So, hi everyone, good evening. Once again, I Yash Sugar, founder and CEO of Krell Research and Educare. I welcome you all to today's webinar. So, first of all, is my voice audible? A quick yes, so that I'm clear that my voice is audible to everyone. A quick yes on the chat box. Perfect, perfect, great. So once again, thank you so much everyone for showing such great love. Again, we are full on Zoom. Of course, I'm pretty sorry. A lot of people are still joining, but I'm not able to connect them. So you can of course join us on Facebook Live. As again today, it would be a great enriching webinar where we'll be learning a lot of things on technicals, on different trade setups, on discipline, and of course we'll be hearing a story of a CA who was doing a great job in a big four firm, and how he's now doing full time trading. So it would be great experience. So stay with us till the end. And of course, as our motto is keep learning, keep sharing. So the whole motto behind conducting all the webinars is to bring great people on board so that they can share their stories with you all. You can learn with their experience. You can learn with their wisdom and their experience in the markets for so many years. So if anyone has any issues with the voice, I think you have just put on your headphones. That will be much better. Okay. So without wasting much time, I'd like to welcome Mr. Amit Seth, who is the speaker for today. So Amit, Thank a you, Yash. warm welcome to you to today's webinar. Of course, people have been talking to me. People have been asking me, like, of course, that how a chartered accountant can become a full-time trader who is doing such a wonderful job in his in a big four firm. So before wasting any time, I will like I'll request you to tell your story to us in a very candid way, like how you started CA and then how you went into a big four, and then of course your trading journey from doing a job to a full-time trading right now. Is my voice audible, Yash? Perfect. It's perfect. Thank you so much for inviting me to this webinar. It's a great opportunity to speak at this platform. So I would like to start. I did my CA somewhere around 20 years back. And after doing my CA, I was lucky enough to be selected for a big four audit firm. So this audit firm, basically, due to my good results and my academic achievements, I was selected for the mergers and acquisition division. तो यश क्या होता Okay. था कि उस समय हम लोग वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ टेक ओवर का जो वैल्यूएशन होता था, लाइक इफ अ बिग कंपनी इज इन इंडिया इज टेकिंग ओवर Okay. अनदर कंपनी, सो वी यूज्ड टू Mm-hmm. हैव अ ड्यू डिलिजेंस व्हिच वी कॉल फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, कि Okay. वैल्यूएशन जो कंपनी दूसरी कंपनी को ले रही है, इज इट करेक्ट और इज Mm-hmm. इट नॉट करेक्ट. So I Mm-hmm. had a good exposure for 3 to 4 years, and during this Mm-hmm. period, I developed a knack for valuations. मेरे ये एक्सपीरियंस से मेरे को क्या फायदा हुआ कि आई कुड अंडरस्टैंड that why a share is trading at 300 rupees or 500 rupees or for that matter at 5000 rupees. आज most of the people who are in the markets, they really don't know कि आज मारुति उनको लगेगा महंगा है कि 5800 रुपीज में कोई मिड कैप उनको 10-20 रुपीज में मिल जाएगा, तो वो बोलेंगे ये सस्ता है. बट ऐसे नहीं होता है. देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, देयर आर वैल्यूएशन मॉडल्स बिहाइंड इट, ईपीएस स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. तो just by doing CA, मतलब CA से मेरे को obviously I had a great experience about all this, but being Mm-hmm. a part of a mergers and acquisition division of such a big consultancy firm, I had a good idea after my exposure and after my stint कि ये सब क्यों हो रहा है. आज आप किसी को भी आज नॉर्मल एनीबडी को आप बोलोगे तो बोलेगा, कोई इफ यू टेल हिम नेस्ले एट 18,000, वो बोलेगा नहीं यार नेस्ले मत दिलाओ मेरे को, यार ये बहुत महंगा है, कोई सस्ता शेयर दिलाओ. सो इट डजंट वर्क लाइक Absolutely. दैट. Mm-hmm. So people were finding value at in lever at 16. In fact, lever जैसे it started from 600 journey to 2400. So most of the retailers were not buying lever, but they were buying an ITC कि यार ये सस्ता है 170 रुपया में, because most of the people, they don't understand valuations. So look at Mm-hmm. the end result where lever is standing today and ITC has almost halved after that. खैर Mm-hmm. that was my initial stint. तो मेरे को एक अच्छा knowledge हो गया, मेरा एक financial background strong हो गया. तो इनिशियली आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस. मेरे को एबीसीडी भी टेक्निकल एनालिसिस का नहीं आता था. सो Mm-hmm. व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब ड्यू टू सम फैमिली कमिटमेंट्स एंड अदर थिंग्स, so I initially I was into investment.
मैं ब्लू चिप कंपनी को अपनी स्टडी के हिसाब से आई यूज्ड टू ओनली इन्वेस्ट, मेरा कोई भी इंटरेस्ट टेक्निकल एनालिसिस में नहीं था, ना मेरा कोई एक्सपोजर था। तो दिस कंटिन्यूड टिल 2007-8 कि only investment. Then there was, you remember 2008 when there was a big euphoria and then it was followed by a crash. Anyway, so how did I start with technical analysis? That is the most important part of it. One day I was sitting in my office. एक मेरा friend of mine, he used to do trading in the stock markets. तो उसने बोला अमित यार क्या कर रहा है आज मेरे ऑफिस में आजा, let's chat. So I went, he is a close friend of mine. The intention was nothing to do with market. So I just went and met him. Then बोला अमित क्या कर रहा है आजकल? तो मैं क्या ठीक है अपना मेन बिजनेस भी है. I do a lot of investment based on valuations. I study, I do research work, I read valuation reports, fundamental reports, and I do investment. तो मैंने बोला तू क्या कर रहा है? कहता है I have taken in a big way to trading. तो इसमें ये है like whatever easy money or whatever like that. So he showed me a software at that point of time. उसके पास एक VeraTech software का था, Advanced Get E-Signal. So that software यश क्या करता था, it used to show the Elliott wave count. जैसे अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसका एक 5 wave पैटर्न होता है, wave 1, then a retracement to wave 2, and then wave 3, wave 4, and finally wave 5. तो उसने मेरे को अपना वो सॉफ्टवेयर दिखाया और बोला देख यार ये तो कितना अच्छा है. The software is automatically calculating the wave count. So there is a wave 4 यहाँ बना है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, देखो wave 5 पे इतना टारगेट दिखा रहा है, and I am going to buy this stock. तो एक बार यार मेरा दिमाग में खटका, सॉफ्टवेयर सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है. तो before that I didn't have any exposure to technical analysis. में बोला ये तो यार बहुत अच्छा चीज है. तो रिस्क मैनेजमेंट का कुछ पता नहीं था उस समय कि क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या लेवल होता है, क्या I had zero knowledge about support resistance, market structure, Dow theory. तो मेरे को ये चीज बड़ी भाग गई कि यार सॉफ्टवेयर विल कैलकुलेट. तो एक बार जैसे एक आम आदमी की तरह आई फॉरगॉट माय सीए बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग. मन में आया यार ये लोग जितने बड़े लोग बन रहे हैं ना, दे आर बाइंग कॉस्टली सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर इज टेलिंग देम एवरीथिंग एंड दे आर मेकिंग मनी. सो दैट वाज माय इनिशियल इंप्रेशन इन माय माइंड. मैं बोला ये तो यार लॉटरी लग गई अपनी. मैंने बोला यार थोड़ा अपना सॉफ्टवेयर दिखा. सो आई रिमेंबर ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज दिस बैंक कॉल्ड IDBI. इट वाज डूइंग रीजनेबली वेल. देयर वर नो NPAs एंड एनीथिंग. मैंने बोला ठीक है. एंड आई थिंक इट वाज ट्रेडिंग अराउंड, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 100 रुपीस. तो इट शोड कि वेव 5 का टारगेट इज अराउंड 140. तो मैं बोला यार ये तो बहुत अच्छा है, अपने तो पैसे बन जाएंगे, सीधा 40% गेन होगा. तो whatever I did, I invested or I traded, I bought IDBI, hoping कि time and wave theory of the Elliott wave के हिसाब से it will reach a target of 140. Then time passed, markets did up and down. तो देखा यार एक दिन प्राइस तो रह गया 70 रुपीस. मैं बोला ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर कैसे गलत हो गया. Then मैं बोला यार ये तो गड़बड़ हो गया. Again went to him, I saw the software. Then I realized the Elliott wave have changed its count according to the market condition. मैं बोला ये तो फंस गया यार. तो फिर there was this realization कि it is not so easy. जो मैंने सॉफ्टवेयर दिखा रहा है that is not the thing. फिर that was my first exposure कि technical analysis क्या होता है. Still I had zero knowledge. फिर मैंने बोला यार then I got a bit of interest. मैंने बोला चलो हुआ जो हुआ, it's okay, it doesn't matter. I bought a software at that time called Metastock. Everybody, I think most of the people are using Metastock out here. They may be using or any other software. खैर उस समय TradingView और ये सब investing.com, these softwares are not available. We had very little option in the markets. So I bought Metastock. I spent money and I allocated a certain portion to trading. कि अब अपने को यार थोड़ा ट्रेडिंग सीखना है. एक तो हो गया ना, देखे कि let's see what is the gist of it. So I wasted मतलब 2-3 years आप कह सकते हो कि looking at indicators. MACD इंडिकेटर देखा तो इसमें बाई सेल सिग्नल आ रहा है. मैंने बोला बहुत अच्छा. तो लाइक आज जितने भी न्यू ट्रेडर्स, आई डिडंट अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर, डाउ थ्योरी क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है. सो डे इन डे आउट आई वाज फोकसिंग ऑन इंडिकेटर्स. तो रोज लगता था यार एक तो होली सेटअप मिल गया, अब तो पैसे आएंगे. द नेक्स्ट डे द सेटअप यूज्ड टू फेल एंड आई यूज्ड टू लुक फॉर अ न्यू सेटअप. जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन दिस वेबिनार एंड इनटू ट्रेडिंग एंड हु आर लर्निंग, दे कैन कोरिलेट विद इट. कि जब आदमी स्टार्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस सीखता है ना, तो वो उसके मन में एक आ जाता है कि आई विल फाइंड अ सेटअप व्हिच विल बी 100% सक्सेसफुल. एंड इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग, वो ट्रेड नहीं करता है, वो खाली सेटअप पे सेटअप. वो एक सेटअप यूज करता है, फेल होता है, अगले सेटअप में जाता है,
बहुत अच्छा, उस समय कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता, मन में एक विश्वास होता है कि अल्टीमेटली मेरे को वो होली ग्रेल मिल जाएगा. So finally what happens is that the person realizes there is no holy grail setup, and trading doesn't work that way. It took me quite a bit of time to realize this fact, but during this period I lost half of my trading capital. मेरा आधा ट्रेडिंग कैपिटल चला गया ये सब एक्सपीरियंस करते करते. सो आई फेल्ट रियली बैड. मैंने बोला यार सीए में मैं इतना अच्छा था, पढ़ाई में मैं इतना अच्छा था, इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा था, एक अंदर में एक फीलिंग ऑफ फेलियर आने लगा यार. एक मैंने मोर देन द कैपिटल आई हैड लॉस्ट, मेरे को लगा कि यार ये क्या हो गया अपने, मैंने फीलिंग केम दैट आई एम नॉट गुड इनफ. सो दैट वाज द फर्स्ट सेटबैक कि नहीं यार ये अपने बस का रोग नहीं है. So then, as I told you, I met a friend of mine. So he was already into the markets for last 4-5 years. Sorry, for the last 30 years, उनका business था. But he never told me how he did it, and he was really good at technicals. तो वो friend of mine मेरा pair trading करता था, like I told you when I met you. तो उसने मेरे को, मैंने उसको सारा बताया यार आधा मेरा कैपिटल जा चुका, मैं क्या करूँ. वो हंसने लग गया, बोला चल ठीक है ऐसा होता है. तो we didn't meet after that. Next day he called me and he said Amit, buy Reliance 2 lots and sell Nifty 2 lots. मैंने बोला यार 10-11 लाख का ट्रेड अगर गलत हो गया तो उसने मेरे को बोला if you lose money I will pay you, if you make money that is your money. मैंने बोला देख मेरे को, हाँ मैंने बोला यार मेरे को ये पेयर ट्रेडिंग आती नहीं है, तू एक्सपर्ट है, you are the expert, I have no idea about it. So बोला don't worry, just trade it casually, mark my words, मैंने believe me. So अगले दिन I bought 2 lots of Reliance. उसमें मैंने I think कितना 7-8 lakhs का lot size छोटा था. This was 10-11 years back, and I shorted Nifty. The very next day I made 4% gain. मेरे को 30,000 rupees आ गया 2 lot में, because Reliance outperformed Nifty. तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो मैं चुप हो गया. ठीक है. 2 दिन बाद उसका फिर फोन आया, बोला अमित ग्रासिम लेके यू शॉर्ट अल्ट्राटेक. मैं क्या देख भाई मेरे को कोई लॉजिक नहीं आता. कहता यू जस्ट डू इट. मैं बोला ठीक है अपना फ्रेंड है, यानी सेड द सेम थिंग वंस अगेन, हंसते हंसते लॉस होगा तो मेरा. तो मैं क्या ठीक है करते हैं. सो आई बॉट. भगवान करे ऐसे फ्रेंड सबको मिले पहली बार. नहीं देखिए आप भगवान जीवन में जब तक कोई हाथ नहीं पकड़े ना, तो somebody is always an angel in your life who helps you. मैंने in any business, मैं स्टॉक मार्केट के बिजनेस में नहीं कह रहा, any kind of business, any kind of profession, there has to be a godfather. Somebody will hold your hand, he will show you the way, and then the things will begin. So ये ग्रासिम लिया, अल्ट्राटेक शॉर्ट कर दिया. अगले दिन 8% का डिफरेंस. कैन यू इमेजिन? आई डोंट नो व्हाट ही सॉ. इट वाज अ मीन रिविजन स्ट्रेटजी. मेरे को जो समझ में आया, द रेशियो वाज ओवरसेट एंड ही हैड यूज्ड मीन रिविजन. आप रबर बैंड को देखते हो, अगर आप स्ट्रेच करते करते जाओगे, या तो रबर बैंड टूट जाएगा या रबर बैंड अपनी प्लेस में आ जाएगा. तो सिमिलरली द रेशियो इतना ज्यादा ग्रासिम अल्ट्रा का रेशियो स्ट्रेच हो गया था. ही सॉ इट, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था. So I bought Grasim, the ratio snapped back, and the next day on 8 lakh capital, I mean 8 lakh trade, Grasim 8 lakh rupees short, Ultratech 8 lakh rupees, I mean Grasim long, Ultratech short, I made somewhere around 35 to 40,000. मैं देखा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, 70,000 रुपीज मेरे को एक हफ्ते में आ गया. So I went to his office. मैंने बोला यार बता आप तू कर क्या रहा है, how you are doing it. So this is how my trading career started. He taught me pair trading, the nuances of the pair trading, and we started pair trading when nobody in India, मैंने बहुत कम जनों को ये concept पता था. And the benefit of pair trading is कि you are not concerned with the market. कल निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आता है कि 100 पॉइंट ऊपर जाता है, we are not bothered. My stock which is long should outperform the stock which is short. Simple as that. कल जैसे सब चलो मेरा ग्रासिम लॉन्ग है, अल्ट्राटेक शॉर्ट है, निफ्टी 100 पॉइंट कोलैप्स कर जाता है, ग्रासिम कम गिरना चाहिए, अल्ट्राटेक ज्यादा गिरना चाहिए, तो मैं कल पैसे कमा लूंगा. तो रात में इट्स काइंड ऑफ हेजिंग, मतलब इट्स काइंड ऑफ मार्केट न्यूट्रल हेजिंग, बट विद अ लॉट ऑफ नुआंसेस. इट इज नॉट सो इजी. सो दैट इज हाउ माय स्टोरी स्टार्टेड. तो मेरे फ्रेंड ने फिर देन ही गेव मी बुक्स अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ट्रेंड्स बाय एडवर्ड एंड मैगी. सो उसके बाद एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस. मैंने इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेडिंग भी स्टार्ट की. I understood the market structure, support resistance क्या होते हैं, value areas क्या होता है, how to buy at support. मैंने then I got into nuances, and this is how my journey began. But it took me 3-4 years to get my act together. So this is how it started. Wow, so amazing journey. मतलब मुझे अभी से सुन के इतना अच्छा लग रहा है that journey which started as a CA, then you came back, and जो हमेशा स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही हुआ था. व्हेन आई एंटर टू द मार्केट, ऑफ कोर्स आई हैड टू सफर लॉसेस. कोई गाइड करने वाला नहीं था,
market looked कि already we are getting so many comments, brilliant journey. ओके सो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। ऑफकोर्स बहुत सारे जन जो हमारे ऑडियंस हमें देख रहे होंगे, सबका बहुत जन रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी जर्नी से, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड यू लॉस्ट योर कैपिटल, यू आर नो वन टू गाइड, एंड फिर आप उसके बाद वो फेलियर से उभर के आप नाउ यू आर डूइंग फुल टाइम ट्रेडिंग। So Amit, here another one very important question comes is like the day you lost 50% of your capital, तो वो जो एक फेलियर पॉइंट होता है, लाइक बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो वो फेलियर को नहीं सह पाते हैं, दे क्विट द मार्केट। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि नहीं, वहां पे ऑफ कोर्स आप फेलियर्स आर द पिलर्स टू सक्सेस, आप वहां से सीखते हो एंड देन यू शुड कम बैक एंड यू शुड लर्न एंड वो जो नॉलेज अपने गेन किया, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? बिकॉज हमारे काफी जन ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपकी तरह 50% कैपिटल इस फॉल पे खोया होगा जो कोविड-19 का फॉल आया है। तो हाउ विल यू गाइड देम, या आपका एक्सपीरियंस आप क्या शेयर करना चाहोगे? विद दिस रिगार्ड यश, आई वुड लाइक टू से लॉस, देखो लॉस से आप उभर सकते हो। जो लॉस होता है ना, लाइक ठीक है, अगर आप थोड़े से भी संपन्न हो एंड यू हैव नॉट ट्रेडेड बियॉन्ड योर रीच, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है, अगर आप जॉब में हो और इफ यू हैव नॉट इन्वेस्टेड योर इंटायर फॉर्च्यून इनटू इट, आप लॉस से उभर सकते हो। मैंने जैसे अगर मेरा वर्थ लेट्स से 10 रुपीज एंड आई एम रिस्किंग 10 रुपीज एंड आई लूज 5 रुपीज, तब मेरे को उभरना मुश्किल है। बट इफ आई एम एलोकेटिंग ओनली अ सर्टेन, देखो हम और भी काम करते हैं, हमारी सेविंग्स भी है, एफडी में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है, तो हमें पहले उतना ही कैपिटल इसमें लगाना है स्टॉक मार्केट में फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जितना लॉस में सह सकता हूँ। कि चलो अगर मैंने 10 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल से स्टार्ट किया, 10 लाख चला गया, तो मेरे लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, मेरे बच्चों के खर्चों में फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लाइफ का हाँ दुख रहेगा कि 10 लाख रुपया चला गया, बट आई कैन स्टिल कैरी ऑन विद माई लाइफ कंफर्टेबली। सो एनीबडी हु इज कमिंग टू स्टॉक मार्केट, आप उतना ही ट्रेडिंग कैपिटल लाइए, ये समझ के कि ये जीरो हो जाएगा, हो सकता है भाई, आफ्टर ऑल देयर इज रिस्क इन इट। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब जो सेकेंड पॉइंट आता है, जो 50% कैपिटल लॉस हो गया, इसमें क्या होता है यश कि मोर देन द लॉस, इट्स एन इमोशनल स्कार ऑन योर माइंड। माने आपको एक फीलिंग ऑफ फेलियर आता है। आई ऑल्सो फेल्ट इट, आई फेल्ट डिजेक्टेड। आई यूज्ड टू डू वेरी वेल इन स्टडीज, सीए में आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स, आई वाज सिलेक्टेड टू द बेस्ट फर्म ऑफ इंडिया, आई वाज सिलेक्टेड फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो लगा यार what is wrong with me, why I couldn't do this, माने एक you feel dejected, loss से इतना dejected नहीं, so that thing माने the feeling आता है कि यार ये कैसे हो गया। तो I think lot of people can relate with it, but the thing is कि I will share with over a period of time कि trading is all about probabilities, I'm going to talk about that also। तो first understand the market, start with very small capital, पहले आप उसके nuances समझिए, just don't jump into the market। अगर आपको डोंट शॉर्ट द मार्केट स्टार्टिंग में, ओके अगर आपको कोई चीज आपने थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस किया, आपको लीवर एक पॉइंट में अच्छा लग रहा है, डोंट ट्रेड इन एफएनओ, क्योंकि यश एक एफएनओ का लॉट साइज होता है 6 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का। अगर आपका ट्रेड, आप जॉब में हो, आपकी छोटी सी कैपिटल है, अगर 2-3% भी लग गया तो आपका तो 30,000 रुपया या 18,000 रुपया एक दिन में चला जाएगा। सो वी कैन नॉट अफोर्ड सच बिग लॉसेस। 2-3 आप लॉस दोगे, लाख रुपया लॉस हो जाएगा, आप मार्केट को हाथ जोड़ोगे, बोलेगा ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। So what I'm saying is कि anybody who is beginning, आपको starting में let's say 12 months, 2 years, till the time you are comfortable, you are liking something, you did an analysis, you feel lever is good at this level for some technical reason, आप उसके छोटे से शेयर खरीदिए, 10,000 के खरीदिए, 20,000 के शेयर खरीदिए, देखिए वो बढ़ता है कि नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है कि क्या होता है। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेन कॉन्फिडेंस। प्लीज मैं हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, डोंट जंप इनटू एफएनओ स्ट्रेट अवे, बिकॉज इफ देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर, अगर आपका 2-3% भी रॉन्ग हो गया तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ लॉसेस। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द मार्केट and only then jump into FNO. This is my only advice to them. Get some experience, get some knowledge, and then jump into the stock markets. Great. So some great wisdom sharing. So actually, I'm completely agreeing with Amit. Bhaiya, that of course, when you're starting in the market, please, if you're starting with trading, only invest that much capital that you can lose, because बहुत सारे traders ऐसे होते हैं जो अपना life savings लगा देते हैं, and they don't have proper knowledge and they trade suppose derivatives, FNO में risky trading कर लेते, they don't understand the risk behind derivatives. So please gain proper knowledge out of derivatives. Start small. Even you can start with paper trading. Yeah, that is also very important. Like, because whenever I teach to my students also, मैं यही बोलता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, and the market is continuously on. मार्केट कभी खत्म नहीं होगा, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
So of course it is very important not to start with derivatives in the beginning, and plus protection of your capital, which is very, very important. So Amit, with this coming to the next part is like what of course lot of our audience there'll be people who will be doing job, like बहुत Yeah. जन job कर रहे होंगे या बहुत जन अपने business में होंगे, and they have passion in trading and they have passion in stock market. So what would be your suggestion will be like कब उनको ऐसा feeling आना चाहिए कि नहीं अब मैं अपना job छोड़ सकता हूँ या अपना full time business में थोड़ा मैं 50% market में आ सकता हूँ. So what is that turning point which you will feel कि नहीं आप तभी जॉब छोड़ो जब आपका इतना इतना एक्सरसाइज कैपिटल हो गया या फिर आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, एंड देन कम टू फुल टाइम ट्रेडिंग, बिकॉज अगेन इट इज अ रिस्की जॉब, बिकॉज आप जब आप जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो तो यू हैव द फिक्स्ड इनकम, बट आप जब फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ऑफकोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको इनकम नहीं आई तो आपका संसार कैसे चलेगा. So like You're right. a lot of people would be interested to know that. So uska like what suggestion will you will be giving? Yes, my suggestion is कि there are a lot of end of day softwares available in the market. आज जैसे आप कोई लाइव सॉफ्टवेयर लेते हो, इवन अ ट्रेडिंग व्यू और एनीथिंग, इट इज कॉस्टिंग अराउंड 25 to 30,000 रुपीज. डिफाइन एज का सॉफ्टवेयर और एनी सॉफ्टवेयर फॉर दैट मैटर. तो मैं somebody who is starting money, who is on job, मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस इज कि डोंट थिंक अबाउट डे ट्रेडिंग, गो फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग. ठीक है. Okay. सो यू हैव टू लुक एट द चार्ट्स एंड ऑफ द डे. देखिए आपकी जॉब होती है, आपकी कमिटमेंट होती है, रियल टाइम आप नहीं देख सकते. सो बाय अ एक चीप एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर, इट हार्डली कॉस्ट यू 9 to 10,000 रुपीज आई थिंक, सब्सक्रिप्शन जो उसका होता है. एंड ऑफ द डे चार्ट्स को स्टडी करिए, फोकस ऑन द डेली टाइम फ्रेम, माने द ओवरऑल, माने फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स, डोंट फोकस ऑन, माने गो फॉर अ पोजिशनल ट्रेडिंग. जब आपको लगे कि आई कैन डू पोजिशनल ट्रेडिंग ओनली देन, और अच्छा ये आने में भी इट इज नॉट सो इजी, इट विल टेक यू 2 to 3 years ऑफ टाइम. सो इफ यू थिंक कि आज मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया और मैंने कल से मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा, इट इज नॉट सो इजी एज दैट. As you said, do paper trade, look at charts end of the day, select a universe of stocks कि मैं ये निफ्टी के 3-4 स्टॉक देखूंगा. आप देखो आप कंफर्टेबल हो कि नहीं. माने whatever you view you are forming on the end of the day charts, just notice कि next day वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मैंने सोचा था ये बढ़ेगा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा. So you have to consistently work on your mistakes. Once you are sure कि नहीं अब मैं कंफर्टेबल हूँ, only then you should focus on leaving your job, otherwise not. Absolutely. Okay. So again, the advice for the job seekers and maybe who are there in business, that please do practice EOD, as Amit Bhaiya told that practice करना बहुत जरूरी है. Then of course you should build up your capital as well, and उसके बाद जब आपको full confidence आ जाए, then only leave your job. Otherwise EOD भी आप देख सकते हो. It's not important you do day trading, positional trades भी करके बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया है. So with this, as you mentioned about day trading, तो एक बहुत important question ये like बहुत जन मुझे पूछते हैं, and बहुत जन का ये आदत भी है कि people like day trading more and compared to positional trading. जब मैं उनको बोलता हूँ कि positional trade अच्छा लग रहा है करो, तो नहीं सर ऐसा कुछ बताओ जो आज लो और आज ही बढ़ जाए, आज लो कल बढ़ जाए. So what would you like more of day trading or you like more of positional trades? Like आपको क्या पसंद है और क्यों? Yes, both of them have their advantages and disadvantages. Somebody who is new to trading, I will not advise him to go for day trading. Like I will say this is more of a generational change. माने जैसे पुराने जमाने में आप देखते थे लोगों को टेस्ट क्रिकेट पसंद आता था, हमारी जनरेशन आई वनडे, और नई जनरेशन जो है वो तो बोलता है 20-23 घंटे में फैसला कर लो क्या होना है, मैं इतना वेट नहीं कर सकता. सो द माइंडसेट इज कि जो नए बच्चे टेक्निकल एनालिसिस में आ रहे हैं, somehow they have been made to believe that this is a quick get quick rich mantra कि हम डे ट्रेड करेंगे, सेम डे करेंगे, बट दिस इज आई वुड से अ वेरी रिस्की अफेयर. डे ट्रेडिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स, स्पेशल सेट ऑफ नॉलेज फॉर द मार्केट, एंड यू हैव टू बी वेरी फास्ट. डे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं चलता है कि आप देख रहे हो सौदा एग्जीक्यूट किया एंड देन यू कॉल योर ब्रेक और काट दो. नो. सो आई वुड सजेस्ट कि बोथ ऑफ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता. पोजिशनल ट्रेडिंग अपनी जगह है, डे ट्रेडिंग अपनी जगह. डे ट्रेडिंग इज ऑल्सो गुड, पोजिशनल इज ऑल्सो गुड. But the thing is कि somebody who is comfortable with the market, you have more reaction time for positional trade. Day trading में आपके पास reaction time नहीं है. आज जैसे आपने कोई शेयर फॉर एग्जांपल टाटा मोटर 96 में लिया, 97 हो गया, you have to decide immediately यार ये ₹1 काफी है कि ये नीचे चला जाएगा. तो reaction time is very small, and for that you require special skill sets. By the time you decide कि नहीं यार अब इसमें से exit करना, वो 94 हो जाएगा, आपका तो लॉस हो गया. So
इट इज नॉट कि ये नहीं पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, डे ट्रेडिंग इज पॉसिबल, बट इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल सेट्स, एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट। मैंने वो ये नहीं है, इट्स अ 20-20 गेम। एंड मेरा एक और एडवाइस है, दोज वैसे तो करना तो पोजिशनल ट्रेडिंग ही चाहिए फॉर बिगनर्स, बट इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन डे ट्रेडिंग एंड इज कंफर्टेबल, वो उसको लगता है कि मैंने काफी टाइम चार्ट्स में स्पेंड कर दिया, माय रिक्वेस्ट इज डोंट स्टार्ट विद स्टॉक्स। आप स्टॉक में डे ट्रेडिंग मत करिए, because stocks, as you can see, are very volatile. A stock like Ultratech, you know, it can move 3% up and 3% down in the same day. आप नहीं उसको मैनेज कर पाओगे। Maybe VIX has got something to do with it right now. जब मैं 3-4 साल पहले ट्रेड करता था कि if you had bought a cement stock like Ambuja, आप राइट ट्रेंड में उसको पकड़ लिया तो ठीक है, इट यूज्ड टू गो इन दैट डायरेक्शन कंफर्टेबली। अभी क्या होता है कि इट गोज 6% इंट्राडे मूवमेंट, 3-4% नीचे भी चला जाएगा, 3-4% ऊपर भी चला जाएगा। यू विल हिट स्टॉप लॉसेस विद यू नो ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। So day trading, please do not do in stocks. Stocks have become very volatile. A stock like HDFC Limited, you have seen for yourself, इसमें कितना बड़ा मूवमेंट आजकल आने लग गया है। पहले क्या होता था, बिग मूवमेंट यूज्ड टू कम ओनली ऑन द रिजल्ट डे व्हेन द मार्केट यूज्ड टू रिएक्ट कि ठीक है रिजल्ट अच्छा है कि खराब है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज अ सिस्टमैटिक मूवमेंट कि स्टॉक अगर 1-1.5%, अब मैं रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूं, मैंने ट्विटर पे भी कॉल दिया था अबाउट 6 मंथ्स बैक, यू नो, आई हैड बॉट अल्ट्राटेक, तो वो 3% बढ़ गया, मैं बहुत खुश हुआ, कॉल सही है मेरा, आई वाज आल्सो इन प्रॉफिट। तो फॉर मी इट वाज अ पोजिशनल ट्रेड। मैं बाथरूम गया, देन आई केम बैक, स्क्रीन में मैं देखा ये क्या हो गया, तो -1% हो गया उस समय। ठीक है, आई अडर टू द रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, आई डोंट रिमेंबर, अगर स्टॉप लॉस होगा तो लग गया होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि डू नॉट स्टार्ट डे ट्रेडिंग विद स्टॉक्स, इट इज माय एडवाइस। स्टार्ट विद, अगर आप कॉन्फिडेंट हो अबाउट योर स्किल्स, डू स्टार्ट विद इंडेक्स, स्टार्ट विद निफ्टी, because you have reaction time। आप देखो एक निफ्टी का लॉट इज फॉर 75 यूनिट्स, तो सपोज करो आज आज अभी कॉल गलत भी होगी तो यू हैव इनफ रिएक्शन टाइम, आप उतना रुपया नहीं खोगे। 30 पॉइंट्स आपके नीचे चला गया, स्टॉप लॉस इज आल्सो वेरी स्मॉल, सो व्हाटएवर पॉइंट यू आर एंटरिंग, यू आर लूजिंग माने 20 और 30 पॉइंट स्टॉप लॉस, तो आपका चला भी जाता तो यू आर लूजिंग ओनली 2000 to 3000 रुपीस पर लॉट। बट स्टॉक में अगर आप गलत होते हो, उसका मिनिमम 1 to 2% स्टॉप लॉस, इवन 1% स्टॉप लॉस हो, then what happens is कि you are losing 6 to 7,000 rupees on that trade and you don't have reaction time। so अगर आपको करना भी है, बहुत कंपल्शन भी है, सीखना है, तो my suggestion is do it only in index, don't do it in stocks unless you are a आपका you are really confident about it, don't do day trading in stocks। Absolutely. So some great insights by Amit Bhaiya. So of course, as he told that it is very very important for you to understand that अगर आप डे ट्रेडिंग कर भी रहे हो तो आपको बहुत स्किल सेट चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। So it is better you start with positional trading. It's better you start with index, as you told. It is very very important. So as Amit Bhaiya, before I give you the floor to share your strategy and share some great setups with us, the one last question I want to ask, as you told something about risk management. So a lot of people who are entering right now technical analysis, उनको बहुत fascinating लगता है, chart बहुत fascinating लगता है. But what is the most important thing is risk management as per me. Like it is very very important. So what are your views on that? Like apart from technicals and risk management, please can you enlighten ki what is the importance of stop loss and risk management? Yash, what is most important is position sizing. If you are taking a trade, तो आपको देखना होगा how much is the total capital allocated and how much of a capital you are willing to lose on that trade. Ideally, you should not lose more than 1% of your capital on any given trade. तो ये अपने को देखना होगा, अपने जब कोई ट्रेड ले रहे हैं in anything, तो अपने को देखना होगा where is the stop loss, कितने परसेंट नीचे है, माने what is the risk reward of the trade, and we have to माने only if you are getting a risk reward ratio 1:2, 1:3, तब ट्रेड करिए. Look for setups which have small stop losses. Don't go for setups which have big stop losses. So you have to be careful about that. And stop loss, I'll tell you what, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आया हुआ है कि इवन इफ यू आर गोइंग राइट इन द स्टॉक मार्केट 6 to 7% ऑफ द टाइम, अगर तीन ट्रेड में 10 में से आपकी 6 ट्रेड सही पड़ रही है, यू आर मेकिंग मनी। अगर 4 ट्रेड में आप अपना स्टॉप लॉस का रिस्क मैनेजमेंट नहीं एडर करोगे तो दैट विल टेक द प्रॉफिट ऑफ योर 6 ट्रेड्स।
तो एक ना एक होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आज से व्हेन प्री स्प्लिट का प्राइस आपको बता रहा हूँ, आईटीसी इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 177, ये मैं आपको 2010-11 की बात बता रहा हूँ। आई बॉट आईटीसी एट 172 इन एफएनओ, 2 लॉट्स। तो क्या हुआ कि एंड आई हैड बिफोर एंटरिंग द ट्रेड आई थॉट कि अगर 172 के नीचे जाएगा आई विल नॉट कीप द स्टॉक। तो द ट्रेड वेंट अगेंस्ट मी, आईटीसी केम एट 172, मैंने नहीं काटा। मैंने बोला यार आईटीसी है, इसमें क्या होगा, रिकवर हो जाएगा, सो लेट्स वेट, आज कल रिकवर हो जाएगा, लॉस क्यों नहीं, अपना प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट डे आईटीसी केम टू 169, सो I didn't adhere to my risk management principle. तो still I was not willing to cut the loss. मैंने बोला नहीं यार, ये तो ITC है, अल्टीमेटली तो रिकवर हो जाएगा, 1-2 दिन का मार्केट्स का चक्कर है। करते करते ITC आ गया 155, तो वहां पे इतना लॉस मैंने, एंड देयर आई बुक्ड इट। तो क्या होता है कि यूजुअली यू विल बुक अ लॉस, अल्टीमेटली आप लॉस बुक करोगे ट्रेड में, अल्टीमेटली आप लॉस बुक करोगे, बट most of the traders they have a problem, they book a bigger loss than what they are supposed to look. लॉस तो अपने 155 में भी मैंने बुक किया, तो 172 में बुक कर देता, वो बेटर रहता कि 155 में मैंने बुक किया। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विद एग्री व्हेन अ ट्रेड गोज रॉन्ग, हम वेट करते हैं कि शायद मेरा भाव आ जाए, लेकिन भाव कभी आता नहीं। इनफैक्ट आई आल्सो यूज्ड टू डू द सेम दैट, आई वोंट शाई इन सेइंग दैट आई यूज्ड टू, अभी मैं काफी कुछ रिस्क मैनेजमेंट में डेफिनेटली करता हूं, बट अगेन इट हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग। अच्छा, इसका एक और डिसएडवांटेज है, यू नो व्हेन योर ट्रेड इज रनिंग एट अ लॉस एंड यू इट इज अ होप ट्रेड कि मेरा प्राइस आएगा, यू आर मिसिंग द अदर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, देयर आर बेटर सेटअप्स, आप उसमें नहीं ट्रेड करोगे क्योंकि आपका सारा फोकस इज ऑन दैट लॉस मेकिंग ट्रेड कि मेरा भाव कब आएगा। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स प्लीज नोट कर लीजिए, वो भाव नहीं आएगा, एंड 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप लॉस बुक करेंगे। तो एक बात बताइए, जो मेरे से गलती हुई 172 में जो मेरे को बुक करना चाहिए, आई बुक एट 155, लॉस तो मैंने वहां भी बुक किया, तो 2% का लॉस बेटर रहा कि 18% का लॉस बेटर रहा? एवरीबडी विल बुक लॉस इन द एंड, बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि हम अगर सही स्टॉप लॉस पॉइंट पे बुक कर देते, वी वुड हैव बीन सेव्ड। सो दिस इज यू नो द मेजर रीजन ऑफ फेलियर इन स्टॉक मार्केट। सो सब ग्रेट, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज ये सब सुन के, बिकॉज आई एम गेटिंग माई फीलिंग कि मैं लाइक आई एम टॉकिंग टू अ एल्डर ब्रदर। मुझे जो मैंने फेस किया है वो आप बता रहे हो, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल, ऐसे नहीं मैंने और आपने ये चीज फेस की है, बहुत जनों ने ये चीज फेस की है। ऑफ कोर्स वी वर लकी दैट वी हैड समवन टू गाइड, और मे बी हमने ये फेस उभर के आज हम लोग आगे बढ़ गए हैं। बट ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर वाचिंग, अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैनेज करें, आप अपना स्टॉप लॉसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दे। जहां लॉस बुक हो रहा है कोई बात नहीं, बुक योर लॉसेस, बिकॉज in markets, in trading, you have to minimize your losses and maximize your profits. That is very very important. So जहां आपको loss minimize हो रहा है वहां पे exit करो, and then as Amit bhai told, you can of course do a second trade, which is very very important. Of course, see right now we cannot tell you to ask questions. Of course, we'll give you opportunities later on. So again, some great insights, some great knowledge sharing, some great wisdom sharing by Amit bhai. Thank you so much for doing that. And now, of course, without wasting much time, I'm giving the floor to you to share your setup, to share your knowledge, to share experiences. So all over to you. Yash, I just want to add one thing. One of your participants have mentioned कि मैंने एवरेज कर लिया। ये एक और बड़ा पॉलिसी है, do not average your trades. Never average your trades. This is a fundamental mistake in stock market. मतलब average your losing trades. Never average your losing trades. एकदम बहुत important है। Okay, in slideshow, I will share my screen now. Yeah. Just give me 1 second. Sure. Is it visible? Yeah, it's perfectly visible. Swing trading setup. Okay, I would like to tell all the participants कि I will share with you a mechanical trading setup today. देखिए, mechanical trading setup you will get on YouTube also. A lot of people are going to share it, but my experience is कि what I will talk about certain aspects of trading with you which are more important than any mechanical trading setup available anywhere. 40% of your success depends upon
the setup, but 60% of your success will depend upon your trading psychology. तो मैं आपसे ना कुछ share करना चाहता हूँ on the various aspects of trading before I share the setup which I have made for you. So we will start with the first page. देखिए, when somebody enters a market, he has to come up with a strategy. आप randomly trade नहीं कर सकते कि there are certain factors which go a long way in making a good trading strategy. Anybody who's trading without a system will never succeed in stock markets. आपका कोई भी सेटअप हो सकता है. You may use RSI, you may use MACD, you may use a Bollinger Band, you may use a trading pattern, but there has to be a plan कि क्या conditions में मैं buy करूंगा और क्या conditions में मैं sell करूंगा. So there are certain factors to be considered in making a good trading strategy. One of the most important factors in making a good strategy, I will discuss it with you, relative strength of the stock in relation to the broader markets. इसका मतलब क्या होता है कि अपने जब कोई स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, आइदर टू गो लॉन्ग ऑन इट और टू गो शॉर्ट इन इट, वी हैव टू सी कि वेदर दिस स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट और अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट. देयर आर वेज टू डू दिस स्टडी कि जैसे सपोज करो वी कंसिडर अ स्टॉक लाइक टाटा स्टील, वी वांट टू गो लॉन्ग इन इट, तो मेरे लिए सबसे मेन क्राइटेरिया होगा कि क्या ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है. सो आई वुड, आप कहोगे इसका क्या एसेंस है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, हम क्यों जाते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक में. व्हाट हैपेंस इज कि इफ यू सिलेक्ट अ स्टॉक व्हिच इज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट्स, व्हाट विल हैपन इज कि सपोज करो कल निफ्टी 10-20 पॉइंट्स खाली ऊपर खुलता है. इफ यू हैव चूजन अ स्टॉक व्हिच इज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, व्हाट विल हैपन इज कि आपका खुलते ही, if your setup, provided your setup is correct, what will happen is कि your stock will outperform and it will move 1 to 2%, whereas the market will only move, let's say 10-20 points on Nifty. So relative strength का concept is very important in stock markets in the selection of the stock which I am going to trade. मेरे साथ भी हो चुका है, आप लोग के साथ भी होया होगा. वी सेलेक्ट अ पर्टिकुलर स्टॉक, फॉर एग्जांपल एनी गिवन स्टॉक, लेट्स से मारुति, अपना सारा सही है, आपने देखा इसमें ब्रेकआउट है, व्हाटएवर है, एंड नेक्स्ट डे वी सी यार निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ गया, मेरा मारुति आधा परसेंट से ज्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा है. एंड देन वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यार अपना सेटअप भी सही था, मार्केट भी सही है, यू टेल अ लॉट ऑफ पीपल यार ये तो चीटिंग हो गई मेरे साथ. मार्केट्स देखो निफ्टी 200 पॉइंट आप है, लेकिन जो मैंने स्टॉक लॉन्ग किया ये तो बढ़ा ही नहीं, बढ़ा है ठीक है, आधा परसेंट बढ़ा है, बट नॉट इन कोरिलेशन टू द मार्केट. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? The reason is that you have selected a stock which is underperforming the market. So a big criteria in stock selection is relative strength. Please do not confuse relative strength with relative strength index. Relative strength, जैसे मैंने कहा, is in relation to the markets. So next thing that we will consider is multi time frame analysis. आज अगर अपने कोई भी stock select करते हैं, if you are trading on a daily time frame, we have to see the monthly chart, weekly chart. We have to assess the structure. What is the importance कि we have to align with the main trend. हमें ये देखना होगा कि ये stock is in an uptrend or is in a downtrend. तो जो भी हम trade लेंगे, that will be in alignment with the larger trend which is available on the monthly and daily time frame. Next factor which is very important in a good trading strategy is कि we have to identify value areas on a chart. A value area क्या होता है? Where there is acceptance or rejection by the market participants. Now, what is meant by this? Okay, first I will discuss what is a value area. एक value area in a chart can be a horizontal or a support resistance zone, or a Fibonacci retracement area like 0.32% or a whatever Fibonacci ratio, or a significant moving average like 20, 50 or 200, or a hidden support or a resistance level like an anchored VWAP point like swing high, swing low or a gap zone. अब इसका मतलब क्या है? The thing is कि जब हम एक चार्ट देखते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वैल्यू एरिया क्या है. वैल्यू एरिया कैन बी अ सपोर्ट एरिया और अ रेजिस्टेंस एरिया. अब इस एरिया में क्या होगा? व्हेन द प्राइस रीच दिस एरिया, सपोज लेट्स से अ सपोर्ट, देयर विल बी एक्सेप्टेंस मतलब मार्केट वो एरिया एक्सेप्ट करेगी एंड द प्राइस विल गो अप, और मार्केट विल रिजेक्ट एंड द सपोर्ट विल गेट ब्रोकन. तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले इट इज नेसेसरी कि हम चार्ट पे मार्क कर लें कि व्हाट आर माय वैल्यू जोन्स, and I will trade only close to those value zones. Why? Because I will have the best risk reward in those areas. अगर हम support पे लेते हैं तो we have very little to lose, and if we short at resistance we have very little to lose in that case also.
So my risk reward of the trade will be better. So we cannot trade randomly कि कहीं पे भी हमने trade कर लिया. We have to trade either at support or resistance, or a hidden support or resistance level like derived from anchored VWAP, or a moving average. So these things are very important before we get into a trading strategy. The next factor to be considered is आप 5-6 पैटर्न होते हैं कि like the next thing that we have to consider in a trading plan is pattern. देखो, in my experience there are many patterns. I don't know whether you have studied or not. There is a cup and handle symmetrical pattern, but I will not go too much into it. For me, the most important pattern in trading जो काफी अच्छे वे में it is working in all time frames is a symmetrical triangle pattern. अगर अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मास्टर कर सकते हैं तो देन इट विल वर्क ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, बी इट डेली टाइम फ्रेम, weekly time frame, or a 60-minute time frame. This one pattern can give you money in any market provided you master it. खैर मैं इतनी डिटेल में नहीं जा सकता. आई एम जस्ट कवरिंग द ओवरऑल थिंग्स बिकॉज आई हैव टू शेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज विच इज द स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडिंग. The other thing that we have to consider is momentum. आज जैसे अपने कोई स्टॉक खरीद लेते हैं, अगर उसमें मोमेंटम नहीं है तो it will not move, so it will be a dead trade. So we have to consider momentum also while executing a trade. The third thing is volatility. Volatility is very important. Volatility works on the principle of contraction and expansion. जब भी volatility contract करेगी, it will be followed by an expansion. Volatility will not give us the direction of the trade, but volatility will tell us that a big move is coming. So we can trade a pattern like inside bar, NR4, NR7, or a Bollinger Band squeeze. आज Bollinger Band squeeze is one of my favorite patterns. Whenever price is squeezing, what happens is कि we will get a volatile move. हमें ये नहीं पता वो किस तरफ जाएगा, but we know a big move is coming. So I will never ignore a pattern where volatility is compressing, क्योंकि मेरे को पता है कि in a short period of time I can make big money provided I get the direction right. Trend strength. Why trend strength is important? Most of the times what happens कि when we are in a trade, अपने सोचते हैं यार कि अब इसको रखें कि बेचें, रखें कि profit book करें. तो then we have to consider trend strength. If the trend is strong, we can continue with the trade. The other factor is volumes. Without volumes, none of your strategy will be successful. And finally, we have to back test the strategy. आज अपनी कोई भी strategy बनाते हैं, उसका एक back testing करना चाहिए कि whether it is working or not. And we should have a think कि ये 10 में से 6 टाइम वर्क कर रहा है, 7 टाइम वर्क कर रहा है, 4 टाइम वर्क कर रहा है. So without back testing, do not implement any strategy in stock market. So these are some of the basic things that we have to consider in making a good strategy. क्योंकि टाइम लिमिट शॉर्ट है, आई कैन नॉट गो इन डिटेल. आई हैव कवर्ड ऑल दिस इन मैंने ब्रीफली. ओके, द नेक्स्ट थिंग जो मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, आप प्लीज ये बात समझिए कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज. बाय प्रोबेबिलिटी क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? आइदर वी विल मेक मनी और वी विल लूज मनी. अपने को ये बात दिल से नहीं लगानी कि वी हैव लॉस्ट मनी और वी आर मेकिंग मनी. वी हैव टू think it about trade in terms of probability. So there are only two outcomes: either we will make money or we will lose money. But the main thing in this is that if we are taking a 10 trades, are we making money in 5 trades, 6 trades, or 7 trades? So what is my probability of success? So that is the main thing, that trading is all about probabilities. So you can, I will share this PPT also, you can go through all this. And the next thing that I want is कि a trader should think like, अपने को ये पता है कि probability game में क्या होता है कि we will not be successful 100% of the time. No strategy will work more than 60 to 65% of the time. But as long as we are making money in 60 to 65% of time with good risk reward ratio, let's say 1:2, 1:3, and we are giving very small losses, then we will be profitable. This is the concept of positive expected value. कि अगर हम 10 ट्रेड ले रहे हैं और उसमें से 6 या 5 भी सक्सेसफुल है, इवन देन वी कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट्स, प्रोवाइडेड जो हमारी 5 ट्रेड्स हैं वी आर नॉट लूजिंग मनी ऑन दोस ट्रेड्स. Trader must start with a trading plan with a positive expected value that has a
proven backtesting record over a long period of time of practice. The trader must have confidence to execute the plan. So हमने backtest किया, हमने देखा ये trade 10 में से 7 time work कर रही है, तो we should backtest it and we should have the confidence to execute this plan. We should not be emotionally attached. आज मैं चलो इसमें नहीं जाता, मैं ये कहता हूँ कि क्या होता है कि how I became a successful trader. जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो what happened, I came up with a plan and then what happened, a strategy. I executed that strategy. 2 बार 3 बार गलत हो गया, मैंने बोला यार ये तो स्ट्रैटेजी गलत है, तो मैंने फिर I started looking for a new strategy. So this carried on for 2-3 years. एक स्ट्रैटेजी के बाद दूसरी स्ट्रैटेजी and I was not consistent with any strategy. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं तो give it time. कम से कम 10 ट्रेड लीजिए, उसमें देखिए वो 10 में से, बिकॉज स्टॉक मार्केट क्या है, द ट्रेड विच यू आर टेकिंग यू आर नॉट श्योर दैट यू विल मेक मनी और यू विल नॉट मेक मनी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ट्रेड्स दैट मॉडल शुड वर्क. सो व्हेनेवर यू मेक अ प्लान, टेक एटलीस्ट 10 ट्रेड्स, देखिए कि 4 ट्रेड वर्क कर रही है, कि 5 ट्रेड वर्क कर रही है, कि 6 ट्रेड वर्क कर रही है. ओनली देन you decide that this strategy will work for you or not. So this is what we understand about trading, about probabilities. Okay, now the law of probability in trading. When we believe in something, we assume to be 100% true unless proven otherwise. मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब अपने स्टार्टिंग ऑफ अपने कैरियर स्टार्ट करते हैं इन ट्रेडिंग, अपने वी आर ओनली लुकिंग फॉर मॉडल्स which have 75 which have almost 100% success rate. अपने बोलते कि यार we waste a lot of time looking for a holy grail setup which is actually not there. So what is important is कि trading is a game of probability and even if you are right 40 to 60% of the time we can make money. आज ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम 40 to 60% of the time we if we are correct we can make money. This is the law of probability. Provided जो 40% टाइम है when we are losing money we adhere to the risk management principle. जो हम stop loss level है we do not give a big loss. So we can be a successful trader with 40% of the trades. We can make a lot of money as long as we manage the other 60% correctly. Similarly, if we are successful 80% of the time, we can still lose money in the stock markets because जो balance 20% of the time है, we are losing a lot of money because we are not adhering to the principle of stop loss and risk management. So as per the law of probability in trading, it is more important to be profitable than to be right. दोस्तों ये बात समझनी बहुत जरूरी है. स्टॉक मार्केट में राइट कुछ नहीं होता, रॉन्ग कुछ नहीं होता. स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक चीज होती है कि अपने को प्रॉफिटेबल होना है. प्रॉफिटेबल अपने तभी हो सकते हैं व्हेन वी हैव अ गुड ट्रेडिंग प्लान. वी मस्ट मेक एन असेसमेंट कि कितने ट्रेड्स हमारे 10 ट्रेड्स में सही हो रहे हैं, वो ट्रेड जो सही हो रहे हैं उसमें हम कितना रुपया कमा रहे हैं, एंड जो बैलेंस ट्रेड है उसमें हम कितना रुपया खो रहे हैं. सो द ट्रेड्स विच आर द लूजिंग ट्रेड्स, मेक श्योर यू डोंट लूज इतना ट्रेड्स की इतना अमाउंट कि यू लूज द मेन प्रॉफिट दैट यू हैव मेड इन द 60% ऑफ द ट्रेड्स. Okay, now as Yash has talked about types of trader, whether you like day trading or whether you like momentum trading or positional trading, so they are different type of traders. कुछ scalpers होते हैं जो they are trading only for 2 to 3 minutes on a chart. वो एक momentum surge देखते हैं, निफ्टी लेते हैं और संग संग बेच देते हैं. तो those categories are called scalpers. Then we have day traders in the market. We have already discussed about that. The third category is momentum trading. Momentum क्या होता है? एक स्टॉक में ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है, मोमेंटम ब्रेकआउट होता है, वी जंप, वी राइड द ट्रेंड, वी मेक मनी एंड वी गेट आउट. The fourth category is swing trading, which we will hold for some time. So ultimately there is last two types of swing and momentum trading. Positional trading. मैं ये सब में इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता because most of you know it and I want to discuss mainly the strategy part of it. So अपने को before we enter the stock markets, we have to decide कि अपने को what is suiting us. Is scalping suiting us? Is day trading suiting us? Is positional trading suiting us? Or is swing trading suiting us? So that will depend कि how much time during the day I can give in a market. Do I work full time? Am I patient? Or do I see results quickly? So there are various factors. तो ये आपकी एक अपनी psychology है which you will have to decide after being in the market कि मैं स्कैल्पिंग करूंगा, कि मैं डे ट्रेडिंग करूंगा, कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करूंगा, कि स्विंग ट्रेडिंग करूंगा. दैट यू विल बी एबल टू नो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन द मार्केट. यश, आई वुड लाइक टू शेयर माय स्ट्रैटेजी नाउ.
Yeah. ओके Okay, perfect. देखिए, मैं इसलिए इतना जल्दी इसमें आ गया, देखो मोस्ट जब मैं भी कोई वेबिनार अटेंड करता हूँ ना, मेरा भी मन होता है यार स्ट्रैटेजी जल्दी से बताओ क्या, बाकी सब तो अपने समझ लेंगे। तो Yeah, आई actually it is very important. एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखिए, ये दिस इज अ स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। So first I will, you can note this down also. We will require the following indicators. The first indicator is Bollinger Band with standard settings. We will be using a 60 minute. अपने 60 minute time frame पे trade करेंगे. It is very important to note this. We are not trading on daily. We are not trading on weekly. We are not trading on 250 minute. We are not trading on a 2 hourly setup. We are trading on a 60 minute time frame. So we will select a 60-minute time frame on the chart. Okay, now what are the indicators required? The indicators required are, just one second. We will set Bollinger Band on the chart with standard setting. This is available in any software. We will plot RSI 14 period. जो हमारे overbought oversold के setting है from 70-30, we will change it to 55-45 setting, and we will plot a Bill William awesome oscillator. ये trading view में easily available है, अपने को बस ये 3 chart पे plot करना है. Finally, this model of mine is including multi time frame analysis also. I will be selecting a MACD histogram with a 240 minute time frame. This is possible on TradingView. मैं आपको दिखा दूंगा ये कैसे होता है. Why? Because why I am using a 240 minute MACD histogram with standard settings. The reason is कि I want to align with the larger trend. अपने को जो main जो बड़ा time frame है, we have to align with that trend. अगर बड़ा time frame bullish है, we would look to buy on a 60-minute chart. If the bigger time frame is bearish, we would look to short in a 60-minute chart. So this increases your probability of success. If my main time frame is bullish, I will try to align my trades with the main trend. अपने main trend के against में नहीं जाएंगे. So how do we determine the main trend? We will determine it with the help of a 240-minute MACD histogram. This thing can be plotted on a 60-minute chart, and I will show you in the trading view. Okay, simple concept. If 240-minute MACD histogram is above zero line, ध्यान से सुनिए दोस्तों, if MACD 250-minute histogram is above zero line, we will only look for long entries. So जब तक MACD 240-minute is above zero, we will not look to short. Why? Because I am trying to align with the main trend, which is bullish. अपने main trend के against जाएंगे तो we will lose money. My probability of success is lower. So we will look only for long entries. If my MACD 250-minute histogram is below zero line, we will only look for short entries. Yes, I think this is clear to everyone. Can you explain them? Yeah. So actually, guys, is it clear to everyone? Just flag us quick on the chat box so that Amit Bhai can quickly go ahead. And I'll just request you to मतलब आप एक बार ये trading view में करके दिखा देना so that everyone knows कि हाँ इसको वो मैं कैसे इसके add बाद करना दिखा दूंगा. Let me discuss the setup, then I will show it on the trading view how it is done. Perfect. I think everyone is clear. सबको मजा आ रहा है. I think a lot of people मतलब must be amazed by the setup because ये इसमें काफी चीजें आपने include की है. So of course बहुत मजा आने वाला है आगे setup में. So great. And of course आप अमित जी will be sharing Facebook में कुछ लोग पूछ रहे हैं तो आपको he'll be showing it live also कि कैसे add करना है. I'll be showing it live. That is not the issue. So Perfect. I repeat once again, हम 60 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे. We will be using MACD 240 minute histogram. Why I am using MACD is a momentum indicator. You know, MACD is a unique indicator. It can, you know, track both trend and momentum. So we are using the momentum aspect of the MACD. So when MACD histogram is positive on a smaller time frame, let's see 60 minutes, we will go for long entries. And when my MACD 240 minute histogram is below zero line, we will only look for short entries. So ये setup क्या कर रहा है? The setup which I'm going to share, it is incorporating multi-time frame analysis to increase the probability of our success. अगर आप multi time frame अपने मॉडल में नहीं include करते हो, तो there are a lot of chances of whipsaw. आप लोगे loss होगा, you will not be able to align with the main trend. There will be a lot of whipsaws in trading. If we are only considering the 60-minute chart and we are not considering the higher time frame,
then they will, to eliminate the whipsaw in trading, we are incorporating the 240-minute chart. Okay, now what is the setup? हमने MACD 240 मिनट हिस्टोग्राम देख के ये डिसाइड कर लिया है कि मैं लॉन्ग रहूंगा कि शॉर्ट रहूंगा. अगर MACD 240 मिनट हिस्टोग्राम इज अबव जीरो लाइन, आई एम ओनली लुकिंग फॉर अ लॉन्ग सेटअप. If MACD 240 minute says below zero line, I will only look for short setup. अब हम कब long होंगे? When on a 60-minute chart, there is a bullish crossover on Awesome Oscillator. Awesome Oscillator is available on TradingView, and RSI is greater than 55. We will go for a, that is my long signal. And हम exit कम करेंगे? We will do a trailing stop loss basis. Trailing stop loss basis मतलब suppose हमने Nifty लिया, it is up by 150 points, so we will start protecting our profits, and we will exit when my price closes below the lower Bollinger Band. ये सब difficult लग रहा है, but it is not so difficult. I'll be showing all this on charts. So I'm repeating once again. 60 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया दोस्तों. 240 मिनट हिस्टोग्राम से हमने डिसाइड कर लिया कि इस सेटअप में हमने लॉन्ग रहना है कि शॉर्ट रहना है. अगर हमने लॉन्ग रहना है तो वी विल वेट फॉर अ बुलिश क्रॉसओवर on the Awesome Oscillator, and we will wait for RSI to move above 55. Once we are profitable, we will start trailing our profits, and we will exit this setup when my prices closes above below the Bollinger Band. मेरे ख्याल से सबको यश, they know what Bollinger Bands are. I think this is a very basic thing, and most probably most of the participants must be knowing about Bollinger Bands and RSI. I am assuming that. Yeah, absolutely. Okay. I think that's quite basic, and even if they don't know, they can just Google. मतलब काफी basic है ये. हाँ, this is a very basic setup. अब short setup. Short setup में हम wait करेंगे for a bearish crossover on the Awesome Oscillator, and we will wait for the RSI to dip below 45. Simple setup. बस ये दो condition meet होने से we will go short. Exit will be on trailing stop loss basis. देखो market में ना हम लोग को profit protect करना है, तो we will increase money, we will start trailing the profits once we are in profit, or the other way of exiting is when the price closes above the Bollinger Bands, and initially our stop loss will be swing high or swing low. Okay, our preferred instrument of trading, हम ये setup Nifty और Bank Nifty में कहेंगे. यश, I think we have already discussed कि why we are preferring Nifty and Bank Nifty. We will not prefer stocks. I think we have already discussed this. क्योंकि क्या होगा ना बॉस कि अगर स्टॉक्स में वी गो रॉन्ग और 2-3% भी लग गया तो वी विल लूज 20,000 immediately. And when we are using this setup on Nifty, our stop losses are small and our reward is big. So we have less to lose and more to make. And Nifty is relatively less volatile. There is more reaction time. आज जैसे निफ्टी घटता है तो अपने को टाइम होता है स्टॉक से निकलने के लिए, नहीं मैं ट्रेड इज नॉट वर्किंग, आई एम एग्जिटिंग. बट इफ ये स्ट्रैटेजी स्टॉक में वर्क करेगी, बट आई विल नॉट एडवाइज ड्यूरिंग दिस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट. आई विल कीप दिस स्ट्रैटेजी रिस्ट्रिक्टेड टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, so that my losses are small and my gains are big. I think that is clear to everyone. Okay, in the end, there's a standard disclaimer. This strategy is not a holy grail setup. Like any other setup, this strategy can fail, especially in a sideways market. Before using, kindly back test. मेरे पे विश्वास मत करिए, back test करिए, देखिए आपके लिए work करता है कि नहीं करता है. I shall not be responsible for any loss whatsoever as a result of this strategy. If you use this strategy, then kindly implement risk management principles. क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क नहीं करेगी. रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मस्ट. यू मस्ट एडhere टू पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस मैनेजमेंट. सो यश, कैन वी मूव टू द मेन स्ट्रैटेजी नाउ ऑन ट्रेडिंग व्यू? एब्सोल्युटली. और जस्ट मैं आपको एक अच्छा, मैं ना यश, आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स. एक बार आप पार्टिसिपेंट से पूछ लो बिफोर आई गो टू द मेन ट्रेडिंग व्यू पेज. Mane, is there anything which they have not understood? I will repeat it. I think we should do like that. Great. So of course, if participants have any questions till now, if you have like not any relating to the strategy, I will show relating to the strategy particularly. आपको अगर समझ में आ गया तो भी आप एक क्विक yes दे दो कि नहीं everything is clear, go ahead, so that we'll know that now everything is clear. Okay, so you're getting good comments. Clear. Okay, so I think everyone is clear with this. Everything is perfect. We can go ahead. So already we've got more than 20 yeses. So I think we are clear on this. मैं एक बार यश मैं फिर से, yeah.
हाँ एक बार आप वो दिखा दो, बट या मैं एक टेल रिक्वेस्ट मी। करूंगा, आप 2 मिनट खाली रिस्क मैनेजमेंट और इन लोगों को थोड़ा सा एनलाइटन अप कर दो, आप कैसे यूज करते हो रिस्क मैनेजमेंट को, सो दैट वो पीपल मैं गेट चार्ट, मोर यश हाइंडसाइट। यश मैं वो चार्ट्स में दिखा दूंगा, इट विल बी इजियर फॉर मी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एब्सोल्युटली ग्रेट, ओके। नॉट एन इशू। मैं थोड़ा सा वापस इनके बेनिफिट के लिए रिपीट करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी करेंगे, मैं ये नहीं कहता मेरी स्ट्रैटेजी यूज करिए, किसी की भी स्ट्रैटेजी यूज करिए, यूट्यूब से देखिए, any trainer की strategy they always align yourself with the larger trend. If the larger trend is bullish and you are trading on a 60-minute setup, you should look for bullish entries. And if the larger trend is bearish and you are trading on a smaller time frame, go for shorts. माने don't look to long the setup if the larger setup is bearish. ये मैंने लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है यश। माने before I go into the एब्सोल्युटली, setup, मैं एकदम इनके एकदम। दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ कि अपने को लार्जर ट्रेंड से अलाइन करना है। सो एब्सोल्युटली इफ वी आर एब्सोल्युटली। नॉट अलाइनिंग विद द लार्जर ट्रेंड, देर इज अ चांस ऑफ लॉस। अपने को ट्रेडिंग जैसे मैंने बताया क्या है, अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे इंप्रूव करेगी? विद द हेल्प ऑफ सेटअप। सेटअप कैसे इंप्रूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम। सो अगर अपने को रुपया बनाना है तो वी मस्ट पहले देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए एनी चार्ट की व्हाट इज द लार्जर ट्रेंड। इफ यू गो अगेंस्ट द लार्जर ट्रेंड, यू आर बाउंड टू लूज मनी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर ये सारे लोग, मोस्ट ऑफ द न्यू कमर्स, इफ दे कैन अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट कि अपने को मेन ट्रेंड से अलाइन करना है, मैं कहता हूँ 70% ऑफ द प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाती है। एकदम दैट एकदम। इसके लिए वी मेरे हैव पास टू, एक या वी छोटा सा हैव टू, कोट ही है कि दैट ट्रेंड इज माय फ्रेंड। तो आप ट्रेंड इज अपने माय फ्रेंड फ्रेंड। के अगेंस्ट में एकदम अगेंस्ट में जाओ ही मत कभी भी। अपने क्या करते हैं कि लार्जर ट्रेंड बुलिश है और अपने कुछ देख के उसको शॉर्ट कर देते हैं, वो उसको मेरे लैंग्वेज में कहेंगे चिंदी चोरी। अपने को चिंदी चोरी नहीं करनी, वी हैव टू मेक बिग मनी। सो इन ऑर्डर टू एब्सोल्युटली। मेक बिग मनी वी हैव टू अलाइन विद द लार्जर ट्रेंड। तो मेरे ये मॉडल में मैं कैसे कर रहा हूँ? विद द हेल्प ऑफ मैकडी 240 मिनट हिस्टोग्राम। अगर ये अबव जीरो लाइन है, सिंपल, आई विल लुक फॉर बुलिश। फॉर लॉन्ग एंट्रीज आई विल इग्नोर ऑल शॉर्ट्स, एंड इफ इट इज बिलो जीरो मैकडी हिस्टोग्राम, आई विल ओनली लुक टू शॉर्ट, आई विल नॉट गो फॉर एनी लॉन्ग एंट्रीज। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। नाउ आई विल गो straight away to the setup. How do I share? I have to share screen once again. यस। Okay, share. Is my screen visible? Trading view का? परफेक्ट, इट्स विजिबल। निफ्टी का चार्ट इज ओपन। निफ्टी का चार्ट है। ओके फ्रेंड्स, देखिए, मैं बड़ा यश, यू कैन मॉडरेट इन बिटवीन बिकॉज आई थिंक यू विल बी एबल टू बेटर कोऑर्डिनेट। अगर कोई चीज आपको लग रहा है पार्टिसिपेंट्स को नहीं, तो दैट नहीं विल नहीं, मेक इट एकदम मोर एकदम, अगर इंटरैक्टिव। कहीं पे भी ऐसा हाँ, कुछ तो रहेगा आई विल आप टेल यू टू डू। आप मेरे को हेल्प करो। मैं सेटअप देखो, मैं ट्रेडर हूँ, मैं समझा सकता हूँ, मैं मे नॉट बी अ गुड स्पीकर, बट सेटअप अरे मेरा नहीं नहीं, अच्छा है। द थिंग यू इज आर कि अमेजिंग स्पीकर, अमेजिंग। सो आई थिंक एवरीवन मे एग्रीज बी अमित इज आई अ वोंट ग्रेट बी एबल टू स्पीकर। एक्सप्लेन। तो सेटअप तो मैं दे दूंगा। अगर आपको बीच में कहीं भी लगे कि यार, फ्रॉम यू लुक एट मी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पार्टिसिपेंट, अगर आपको कहीं भी लगे यार ये पार्टिसिपेंट को थोड़ा ज्यादा बताना चाहिए, प्लीज मॉडरेट एंड लेट मी नो। ठीक है? ओके, नाउ वी स्टार्ट। एक बार अपने आरएसआई को ऑफ कर देते हैं और अपने ऑसम ऑसिलेटर को ऑफ कर देते हैं। सो दिस इज अ 60-minute चार्ट। यश, एम आई क्लियर? आई थिंक समबडी क्लियर। हैज रेज्ड अ हैंड। नो एक्चुअली आई विल जस्ट पुट इट डाउन। अभी अपने क्वेश्चन लेंगे। आई ओके। थिंक वी आर गेटिंग ग्रेट। मैंने आपका जो पूछा था स्पीकर के बारे में, आई थिंक नो वन थिंक्स दैट यू आर नॉट अ गुड स्पीकर। अरे ठीक है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर, मिस्टेक मत करिएगा बाद में। वी आर यूजिंग अ 60-minute चार्ट। देखिए, ट्रेडिंग व्यू में वी हैव सिलेक्टेड अ आवरली चार्ट। ये स्ट्रैटेजी 2 आवरली, डेली, वीकली कहीं पे मत यूज करिएगा। ओनली इट हैज टू बी यूज्ड ऑन एन आवरली चार्ट। Okay. Then the next thing is we have plotted the basic Bollinger Band on the price. I think ये भी easy है, easily trading view में Bollinger Bands are available. So if you type Bollinger Band, I think this is easily available. Anybody can type it. I mean install it. देखिए main चीज क्या है? Then we plot RSI. RSI is standard 14 period, and we are using 55 and 45. हेलो, आई थिंक आपका वीडियो स्टक हो गया है। Yeah, so actually video stuck, maybe just wait for a second. I think maybe some issues with his internet.
Amit ji, are you able to hear us? Now the next thing is we are going Amit to ji, I just like to sorry to interrupt you. Actually, बीच में आपका वीडियो स्टक हो गया था तो कुछ सुनाई नहीं दिया था लास्ट. अच्छा, Can now you it's just okay, repeat last? now it's Now okay. it's perfect. Perfect. Okay. Perfect. So हम charts पे we are going to plot a RSI indicator. Is it clear, Yash? Clear. 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 Upper band we will fix at 55, lower band we will fix at 45. ये कोई difficult काम नहीं है. एकदम नहीं. Input we will keep it as standard as 14. इसमें अपने कोई changes नहीं करेंगे. Perfect. Okay. Now we are going to use an awesome oscillator. ये आप ट्रेडिंग व्यू में जाके इंडिकेटर सेक्शन में आप टाइप करोगे OSESOME. Can you see this awesome oscillator here, Yash? Absolutely awesome oscillator. Very easy to add. बस तो अपने क्या किए हैं अभी तक, अपने एक आवरली चार्ट यूज किए हैं, उस पे बॉलिंजर बैंड प्लॉट किए हैं, वी हैव यूज्ड एन आरएसआई इंडिकेटर, बैंड फिक्स किया 55 45 एंड वी आर गोइंग टू प्लॉट एन ऑसम ऑसिलेटर. Absolutely. आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस. एकदम totally clear. सो ये जो थर्ड इंडिकेटर है दैट इज ऑसम ऑसिलेटर. वी आर नॉट चेंजिंग एनी सेटिंग. अपने इसका कोई इनपुट सेटिंग नहीं चेंज कर रहे हैं. व्हाटएवर इज प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड वी आर यूजिंग दैट. आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस. एकदम absolutely. ओके, नाउ कम्स द डिफिकल्ट पार्ट. डिफिकल्ट नहीं है लेकिन तो एक बार मैं आरएसआई को ऑफ कर देता हूँ. ऑसम ऑसिलेटर बाद में दिखा दूंगा. ये जो मिडल में जो यश इंडिकेटर है दैट इज अ मैकडी 240 मिनट हिस्टोग्राम. कैन यू सी इट? एकदम absolutely. ये मैकडी का कैलकुलेशन ये मैकडी का कैलकुलेशन 240 मिनट में कर रहा है, 60 मिनट में नहीं कर रहा. माइंड यू, बाद में ये मिस्टेक मत करिएगा. आप देखिए यहाँ पे 240 मिनट लिखा हुआ है. सो वी आर यूजिंग अ 240 मिनट. आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? आई विल शो यू दिस. So you go to the indicator. बस हाँ, ये सबसे important और सबसे difficult है. So I will plot it for you once again. This MACD 240 मिनट हम कैसे plot करेंगे? We will go to the public library and can you see this Chris Moody का indicator 50,258 likes है इसमें. MACD custom indicator multi time frame. Yes, can you see this? Absolutely, we can see that. Participants, you can just note it down even. Like Chris Moody. मैं 2 मिनट यहाँ पे रुक. हाँ, मैं 2 मिनट यहाँ पे रुकता हूँ. ये क्रिस मूडी का इंडिकेटर है, उसने ये बनाया हुआ है. आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए. पार्टिसिपेंट्स शुड नोट इट. बाद में आपको डिफिकल्टी होगी विद दिस. हाँ, and trading view, like those who don't know, it's a free website. आप आराम से इसको फ्री में यूज कर सकते हो. आराम से यूज कर सकते हैं. तो ये मैकडी कस्टम इंडिकेटर उसमें है इन द पब्लिक लाइब्रेरी. आप अगर बिल्ट इन में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा. देखिए बिल्ट इन में ये नहीं मिलता है. हाँ, तो ये पॉइंट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज सो दैट इट्स कन्वीनियंट फॉर एवरीवन. वी क्लिक ऑन पब्लिक लाइब्रेरी. पब्लिक लाइब्रेरी का सेकंड इंडिकेटर इज मैकडी कस्टम इंडिकेटर मल्टी टाइम फ्रेम. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. वेयर एम आई गेटिंग दिस? एब्सोल्युटली. ठीक है. एंड अमित जी, द बेस्ट पार्ट इज अपने को ये दिस इज लाइव ऑन फेसबुक एज वेल. तो किसी को भी अगर कुछ मिस हो गया तो यू कैन डेफिनेटली गो अगेन सी इट. द वीडियो इज विल बी अवेलेबल थ्रू आउट. यस. उसका कोई बात ही नहीं है. ओके, नाउ वी क्लिक ऑन दिस मैकडी इंडिकेटर. ठीक है, मैंने इसको क्लिक कर दिया और ये बंद कर दिया. ये आप एकदम बॉटम में देख रहे हो. इनिशियली मैकडी विल लुक लाइक दिस. ओके. अगर अपने उसको कोई सेट नहीं करते हैं तो आई विल गो टू द सेटिंग्स पार्ट. ओके, ये आप सेकंड आप देख रहे हो, यूज डिफरेंट टाइम फ्रेम. एकदम दिख रहा है. इसमें जाके अपने इसको सेलेक्ट कर लेंगे 4 आवरली. ठीक है. करंट चार्ट रेजोल्यूशन को अपने ऑफ कर देंगे बिकॉज करंट चार्ट रेजोल्यूशन इज यूजिंग 1 आवरली टाइम फ्रेम एंड आई वांट अ 240 मिनट हिस्टोग्राम. इज इट क्लियर? ओके, परफेक्ट. तो इसको मैंने ऑफ कर दिया. यहाँ मैंने सेटिंग 240 मिनट कर दिया 4 आवरली. एकदम. we don't need MACD signal length, we don't need dots, we only need histogram. मैं बाकी सारी चीजों को अनचेक कर दूंगा. परफेक्ट. 4 कलर रहने दीजिए. ठीक है. तो मैंने क्या किया, मैंने जाके यहाँ पे सेटिंग कर दी 4 आवरली. ये अगर आप ये करंट चार्ट रेजोल्यूशन को अनटेक नहीं करोगे तो वो 60 मिनट का हिस्टोग्राम दिखाएगा. इट विल नॉट शो यू द 4 आवरली हिस्टोग्राम. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स शुड नोट दिस. अगर आप इसको अनटेक नहीं करोगे तो आपका 4 आवरली हिस्टोग्राम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में नहीं आएगा. आई थिंक दिस इज परफेक्ट. So I uncheck it. So after unchecking it, I will get a 4 hourly. अब जाके मैं स्टाइल में जाके मैं खाली ये करूंगा. मैकडी को मैंने ऑफ कर दिया, सिग्नल लाइन को ऑफ कर दिया क्योंकि मेरे को खाली हिस्टोग्राम चाहिए. ठीक है.
एकदम एंड आई प्रेस ओके. अब ये ऊपर और नीचे वाला आर दे लुकिंग सिमिलर? खाली एकदम कलर चेंज है यार, absolutely. कलर तो अपने कोई भी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं. हाँ, that is very like upon us. कोई दिक्कत नहीं. So we are getting the same output. हम्म. So this is how we are going to do setting of a 240-minute MACD histogram on a 60-minute chart. ठीक है? Perfect. Okay. Perfect. Now let's come to the interesting part. तो अपने को चार्ट सेटिंग करना आ गया है. Now we will talk about the strategy. RSI अपने ऑन कर लेते हैं. Awesome oscillator अपने ऑन कर देते हैं. Okay. Whenever this MACD histogram is above zero line, एक बार मैं इसको फिर ऑफ कर देता हूँ RSI का. We will only look for long trades. ये जब MACD हिस्टोग्राम ऊपर जा रहा है above zero line, we will only look for long trades. इस समय आप ये देखिए कि एक रिएक्शन आ रहा है 10,200 से लेके नीचे 997 आ गया. We will not look to short it. Why? Because my MACD histogram is above zero line. ठीक है? Now in this portion, when my MACD histogram is below zero line, we will only look to short. I think this is clear. Simple concept है. स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने से पहले अपने को ये देखना होगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माय मैकडी हिस्टोग्राम. ओनली देन आई विल इंप्लीमेंट माय स्ट्रैटेजी. अगेन अपने थोड़ा पीछे आते हैं. ये पोर्शन में जब मैकडी हिस्टोग्राम नीचे है, वी विल ओनली लुक टू शॉर्ट. एंड व्हेन माय मैकडी हिस्टोग्राम इज अबव जीरो लाइन, लेट्स से हियर दिस हिस्टोग्राम हियर, वी विल ओनली लुक टू गो लॉन्ग. अपने ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अपनी लार्जर टाइम फ्रेम का जो मोमेंटम है, वी आर ट्राइंग टू अलाइन आवर ट्रेड्स विद दैट. ओनली देन we'll have a good probability of success. So I think this thing is clear, Harsh. I don't think this is Yash, this is that difficult. Perfect. तो हमारा पहला फिल्टर हो गया कि मैकडी हिस्टोग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है 240 मिनट का. जीरो लाइन के ऊपर है तो वी विल लुक टू लॉन्ग. जीरो लाइन के नीचे है तो वी विल लुक टू शॉर्ट. नाउ वी स्टार्ट द RSI and awesome oscillator. So what will be my entry point? My entry condition is कि when the first time this RSI goes above 55, okay, and my awesome oscillator is above the zero line and my MACD is above zero, that will, when all these three conditions are satisfied, I would look to long Nifty. Okay. Clear है? Clear है एकदम. अब इस पॉइंट में आप देखेंगे MACD भी मेरा पॉजिटिव है, awesome oscillator भी पॉजिटिव है, RSI का रीडिंग भी 65 है. So here I will enter. ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है. द रूल व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज अ मैकेनिकल स्ट्रेटेजी. अपने एकदम डिफिकल्ट, इट इज अ रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी. माने ये कोई आर्बिट्री स्ट्रेटेजी नहीं है अपने को अच्छा लगा अपने ले लिया. इट इज अ रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी. सो देयर आर ओनली व्हेन सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस विल बी मेट, आई विल गो लॉन्ग. ओनली व्हेन सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस आर मेट, आई विल गो शॉर्ट. ओके, परफेक्ट. सो व्हाट विल बी माय इनिशियल स्टॉप लॉस लेवल? My initial stop loss level will be this swing low. ये लाइन आपको नजर आ रही है? एकदम. तो ये पॉइंट जो भी लेटेस्ट स्विंग लो. हाँ, लेटेस्ट स्विंग लो है. दिस विल बी माय स्टॉप लॉस. अपने ये एंटर कर गए, उसके बाद ये जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है, वी आर नॉट बॉर्डर्ड बिकॉज वी आर टेकिंग अ पोजिशनल ट्रेड. दिस ट्रेड कैन लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज. आई एम नॉट बॉर्डर्ड. ठीक है, ये कोई डे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई स्कैल्पिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है. वी वांट टू मेक बिग मनी. हमें एक अच्छा गेन करना है. The model is such कि when we go wrong, अपने को छोटा अमाउंट लूज करना है, and when we go right, we should make a impulsive, माने impulsive gain होना चाहिए. We should make a big gain. ठीक है? The success of mantra in trading is कि जब आप when you give a loss, give a small loss, and when you go right, please make good money. आप चिंदी चोरी मत करिए कि 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट निफ्टी में खाया और अपना हो गया. No, we have to make a big gain. Only then you will make good money in the stock market. So I will repeat, at this point my awesome oscillator is positive, my 240-minute histogram is above zero line and RSI is above 60. So we enter here. ठीक है? Okay. अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ये स्टॉक मार्केट में it is quite possible. Now when we will exit this strategy, there are two ways to exit. Either my price touches the lower Bollinger Band, ठीक है? Okay. और इस पॉइंट में मैकडी भी नेगेटिव हो गया, जीरो लाइन तो हमने वैसे भी नहीं रखा, और मैं ऑसम ऑसिलेटर बिकम्स नेगेटिव. इज इट क्लियर? ओके, क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, सो अगर अपने ये मैं करंट चार्ट में भी दिखाऊंगा, ये तो हिस्टोरिकल है. सो इफ वी हैड एंटर्ड हियर, वी कुड हैव मेड दिस मच गेन.
almost. So Amit, we'll be exiting when it hits the upper Bollinger Band or lower one लोअर, we देखो will देखो exit, जब right? जब Lower one. लॉन्ग में है, when जब अपने लॉन्ग कर रहे हैं तो इट विल बी हम्म, बेरिश ओनली व्हेन द लोअर बॉलिंजर बैंड इज हिट, तभी तो मेरा ट्रेंड खत्म होगा ना, ओके, एकदम तब ट्रेंड खत्म हो जाएगा। ट्रेंड खत्म हो रहा। और मेरा करेक्ट। ये ऑसम ऑसिलेटर नेगेटिव हो जाए बीच में, सपोज करो प्राइस यहाँ आया एंड ऑसम ऑसिलेटर बिकम्स बेरिश, नीचे की तरफ चला गया, तो आई विल एग्जिट। I will exit. Perfect. So that's a ओके, very easy criteria as वेरी well. इजी क्राइटेरिया, वेरी इजी क्राइटेरिया। एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड यश अपने को ना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। आप ये सिस्टम मेरे ख्याल से आप बेटर इनको समझा सकते हो कि एवरी 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी गेन में वी हैव टू कीप मूविंग आवर स्टॉप लॉस अप सो दैट वी आर प्रोटेक्टिंग आवर प्रॉफिट्स। अरे रात में एक ट्रम्प का ट्वीट आ जाएगा, एक इंडिया चाइना का हो जाएगा और सारा प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। परफेक्टली। तो अपने इसको ऐसे कर सकते हैं कि ऑन एवरी 100 पॉइंट राइज, जैसे यस सपोज जाने में लिया 100 पॉइंट बढ़ गया, तो पहले मैं अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख लूं, बिकॉज यस फर्स्ट मैं यस मैं एटलीस्ट लूज नहीं करूं उससे। यस। सो फिर आई जैसे थिंक, जैसे 100 पॉइंट बढ़े मैं 100 पॉइंट आगे इसको ट्रेल करूं। हाँ ट्रेल करिए, यू आर परफेक्टली करेक्ट। सो ये चीज आप परफेक्ट। बेटर समझा सकते हो कि वी मस्ट कीप ट्रेलिंग आवर प्रॉफिट्स, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर प्रॉफिट्स। एब्सोल्युटली ठीक है, एब्सोल्युटली। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड हिस्टोरिकली। लेट्स सी द करंट चार्ट, करंट में क्या हुआ। ठीक है, मेरा आई विल शो यू दिस। देखिए आई विल यूज अ वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट पे यश हम्म। माय ऑलमोस्ट माय मैकडी बिकेम नेगेटिव इस पॉइंट पे। ठीक है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट माय आरएसआई इज 45.9 से 7, माय क्राइटेरिया इज नॉट मेट। ओके, ओके माय ओके ऑसम ऑसिलेटर इज आल्सो पॉजिटिव हियर। ओके। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस ट्रेड। इज इट क्लियर? ओके। अब ये पॉइंट पे अपने जब आते हैं, लाइक ऑन दिस पॉइंट व्हाट हैपेंस इज एट दिस पॉइंट, आई थिंक ये करंट चार्ट में आरएसआई आपको दिखा, ब्रेक एट दिस 45। पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे जो मैंने सेकंड रेड लाइन बनाई है, माय फर्स्ट क्राइटेरिया, माय मैकडी इज नेगेटिव, सो आई एम ओनली लुकिंग फॉर शॉर्ट ट्रेड्स, 240-minute histogram, I will not look for long trades. Is it clear? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। At this point my RSI is below 40, you can clearly see it, and my awesome oscillator is negative. This will be my entry point. ओके। So the परफेक्ट price एकदम। is around 10,023 और ये मोटा मोटी नीचे तक अपने को 500 पॉइंट का गेन, सेम फंडा, अपने को प्रॉफिट ट्रेल करना है। जब मूवमेंट ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियसली ऑन अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिस हमारा मोर और लेस यहाँ पे कट जाएगा सौदा। We will, 9650 700 के हाँ, अब अपने यहाँ पे अगर शॉर्ट हुए, दैट वाज अराउंड 10,023, वी हैड सीन मोर लेस 9,587। सो इवन इफ यू आर ट्रेलिंग इट, तो आई थिंक 9,600 या 700 के आसपास 300 पॉइंट गेन के साथ दिस स्ट्रैटेजी विल बी कंप्लीट, परफेक्ट परफेक्ट। क्योंकि अपने ट्रेल कर रहे हैं ना स्टॉप लॉस। सो दिस हाँ इज एकदम इंपॉर्टेंट ट्रेल टू कर रहे अंडरस्टैंड। अगर मैंने ये लिख दिया कि अपर बॉलिंजर बैंड जब तक टैग नहीं होगा, ये ऑसम ऑसिलेटर ऊपर नहीं जाएगा, तब तो अपना प्रॉफिट ही सारा चला जाएगा। हैं। एकदम 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 एकदम। सो वी वो हैव टू ट्रेल ट्रेल। स्टॉप लॉस करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये पॉइंट थोड़ा आप पार्टिसिपेंट्स को समझा दो तो बेटर है, तो मैं आगे बढ़ूंगी। यू हैव टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स। सो अगर अपने ट्रेल भी यहाँ पे करते तो वी हैव इजीली मेड 300 पॉइंट्स ऑन निफ्टी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एम तो आई आज करेक्ट? अमित भैया हैज टोल्ड एब्सोल्युटली इट इज वेरी मच क्लियर कि आपको स्टॉप लॉसेस ट्रेल करना है। क्यों ट्रेल करना है? बिकॉज योर मोटो इन मार्केट इज टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट एंड मिनिमाइज योर लॉस। प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जो प्रॉफिट में होते हैं वी आर नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू इट। तो हमें अगर ट्रेल स्टॉप लॉस हम यूज करते हैं, हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा, प्लस हमें एक ऑफकोर्स वी कैन नॉट एग्जिट एट द बॉटम। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग एकदम टॉप पे शॉर्ट करेंगे और बॉटम पे ले लेंगे, योर वॉइस इज नॉट दैट्स नॉट क्लियर। पॉसिबल। माय वॉइस इज नॉट क्लियर? नाउ इट्स ओके, ओके, नाउ इट्स ओके। ओके यू कैन परफेक्ट। हियर मी? तो या आई एम एबल टू हियर यू। ओके परफेक्ट। तो आपको स्टॉप लॉसेस ओके, ट्रेल करने एब्सोल्युटली ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने के आपका फायदा क्या होगा कि जैसे 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 अमित जी ने दिखाया अभी कि जब 9550 के आसपास गया था, इफ यू वुड हैव ट्रेल स्टॉप लॉसेस की 100 पॉइंट नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस करते रहूंगा, राइट, लाइक 10,023 से 9,923, 9,823, 9,723, तो योर स्टॉप लॉस वुड हैव बीन हिट अराउंड 9,650। तो एटलीस्ट ओवरऑल यू वुड हैव गेन 300 पॉइंट्स। ऑफ कोर्स एंट्री एग्जिटिंग एट द बॉटम इज नॉट पॉसिबल। आप ये सोचोगे कि 9,570 पे मैं एग्जिट कर लूं जहां बॉटम बन रहा है, नो वन विल बी एबल टू एग्जिट एट द प्रैक्टिकली नॉट बॉटम। पॉसिबल। Practically impossible. So I think that's a great strategy shared by Amit Bhaiya. That's like it has some great rules which you have to follow, and of course trading stop loss is very very important as I told you. Yeah. So Amit Bhaiya, go ahead.
अब मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करना, आई विल शो यू द करंट आल्सो, जो करंट में क्या हुआ 2-3 डेज बैक, व्हाई। आप अब लोग पूछेंगे यार आज एक बात समझो, आई जस्ट वांट टू टेल देम समथिंग। अगर अपने ये मैकडी 240 हिस्टोग्राम को ऑफ कर दें, ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट इज माय लार्जर ट्रेंड। तो लार्जर ट्रेंड अगर अपने को नहीं पता होगा तो ये विपसॉ होता रहेगा। देखिए एवरीवेयर इट्स अ विपसॉ। यू लुक एट दिस एरिया, ऑसम ऑसिलेटर कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। लुक एट टू द लेफ्ट ऑफ योर चार्ट, ये आप देख रहे हो यश? एकदम एकदम वो आपको ट्रेड मतलब बाय सेल में हाँ, आपको स्टॉप लॉस बाय सेट सेल कर कर रहा है। कभी आरएसआई 45 के नीचे जा रहा है, कभी आरएसआई 60 के ऊपर जा रहा है, ऑसम ऑसिलेटर कभी नीचे, तो सारा दिन तो आपका स्टॉप लॉस ही लगता रहेगा। तो ये मॉडल मैंने क्यों बनाया है, आई टू मैंने रिमूव दिस whipsaw इन ट्रेडिंग। हम लोग सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि whenever you trade there is a lot of whipsaw in the market. To remove this whipsaw in the market, I have incorporated 240-minute MACD histogram, ताकि मेरे को ये पता चल जाए where is the larger momentum. Larger momentum is bullish or bearish. So when we are putting this 240-minute histogram, we are taking the right trades. Now I will switch it on once again. ये देखिए यहाँ पे मैंने वापस स्विच किया। हर्ष ये देखो, यश ये देखो, ये टोटली मैकडी जीरो लाइन के नीचे है। आपने देखा ये पॉइंट को अराउंड 13th में ऑसम ऑसिलेटर पॉजिटिव हो गया और आरएसआई 60 के ऊपर चला गया। कैन यू सी दिस? तो ये विप्सो हमारा ट्रेड का कैसे बच सकता था? हाउ कुड हैव वी प्रिवेंटेड दिस ट्रेड? सिंपल, because my MACD is below zero line, I wouldn't have looked for long opportunities. I am only looking to short the market. Am I clear on this? Absolutely. So ये जो मेरा larger multi time frame analysis मेरे को whipsaw से बचा रहा है ट्रेडिंग का, point number 1, it is increasing my probability of success because why? I am aligned with the larger trend. Absolutely. सो अगर अपने ये वाला पोर्शन देखें, यहाँ पे अपने नहीं लेंगे, वी विल गो शॉर्ट हियर एट दिस पॉइंट। देखिए 14 में 115 पे, बिकॉज माय ऑसम इज नेगेटिव, माय मैकडी हिस्टोग्राम इज 0, आरएसआई इज बिलो 30 एंड द लेवल इज अराउंड 9119 एंड इट केम डाउन टू ऑलमोस्ट 8800। वी मेड 300 पॉइंट्स ऑन दिस ट्रेड। और अगर अपने ये पॉइंट पे बाय करते हैं, इग्नोरिंग माय मैकडी हिस्टोग्राम, अगर अपने मैकडी हिस्टोग्राम को नहीं फॉलो करे, ऑसम पॉजिटिव हुआ, आरएसआई अबव 60 गया, तो ये सारा ट्रेड विपसॉ हो जाता। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर पोर्शन? मैं इनको दिखाना चाहता हूं सबको कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप ये पोर्शन देख रहे हैं, ये हाईलाइट हो गया। सो आई एम नॉट, ये विपसॉ से मैं कैसे बचा? बिकॉज माय मैकडी हिस्टोग्राम इज बिलो 0, आई विल नॉट लुक टू गो लॉन्ग, I will only look to go short because momentum on the larger time frame is on the downside. So do you see the beauty of this model? तो ये मॉडल हम लोग को विपसॉ ट्रेडिंग से बचा रहा है, जो एक ट्रेडर का कॉमन प्रॉब्लम है। इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद एवरीवन। ओके, सो नाउ वी गो टू द करंट डेट। देखिए भाई फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को देखना है कि मैकडी का है। ये देखिए मैं करंट आपको दिखा रहा हूँ, एकदम करंट सेशन का ट्रेडिंग। देखो मैकडी हिस्टोग्राम बिकेम पॉजिटिव हियर, इट वेंट अबव द जीरो लाइन एट दिस पॉइंट। ठीक है यश? So this was around, ये मैं करंट ट्रेड दिखा रहा हूँ। कोई ये ना बोले यार ये तो हो गया, आप करंट में क्या हुआ आप वो करके दिखाइए, तो मैं वो दिखा रहा हूँ। सो एट दिस पॉइंट माय मैकडी, तो मेरा लार्जर मोमेंटम इज बुलिश। सो इफ माय लार्जर टाइम फ्रेम मोमेंटम इज बुलिश, आई विल ओनली लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। तो यहाँ पे हमने देखा all my 3 criterias are met. My RSI is above 55, my awesome oscillator is positive. तो ये मैं ट्रेड में कहाँ एंट्री किया? मोर और लेस अराउंड, इफ यू कंसीडर द क्लोजिंग प्राइस आल्सो 10,129. सो हाउ मच गेन एम आई सिटिंग ऑन टिल नाउ? ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। Almost 150 points. Good enough. सो दिस इज द मॉडल। अच्छा, अब ये पीरियड में अपने इन्हें नहीं ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे अपने एग्जिट हो गया सेकंड टाइम, ऑसम ऑसिलेटर बुलिश होके नीचे नहीं गया। सो दिस एरिया वी हैड अवॉइडेड टू ट्रेड। ये सारा एरिया अवॉइड हो गया इन दिस मॉडल। कैन यू सी दिस? Absolutely. वो पूरा विपसॉ वाला एरिया हो गया। हाँ, तो ये मॉडल इज एलिमिनेटिंग माय विपसॉ एंट्रीज आल्सो। ये पूरा एरिया हमने नहीं ट्रेड किया। क्यों? क्योंकि ऑसम ऑसिलेटर ये तो यहाँ पे हमने बुक कर लिया, तो सेकंड टाइम वी हैव टू वेट फॉर ऑसम ऑसिलेटर टू गो अबव 0 एंड आरएसआई एंड द सेम थिंग टू वंस अगेन डिप बिलो 0। तो कैन यू सी दिस कि ये जो सारा एरिया है, ये जो विपसॉ ट्रेडिंग है, जो रेंज है 9700 टू 10,000, ये सारा विपसॉ से हम बच गए, गैप अप गैप डाउन से। So this is the beauty of the model.
परफेक्ट परफेक्ट। तो आई थिंक So अभी स्टॉप लॉस please ask ट्रेल स्टॉप लॉस everybody, is हमारा this कॉस्ट पे clear? होना और चाहिए। do अगर हाँ अपने देखो, किसी ने अगर अपने ट्रेड यहाँ लिया पे होता तो एंटर ट्रेल किए स्टॉप हैं लॉस अपना। अराउंड, हाँ 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 10,091 में, तो मेरा स्टॉप लॉस वाज अराउंड 98। पहले इनिशियली आई वुड हैव सेड दिस, ये जो ऑलमोस्ट जो लास्ट बॉटम है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे करेक्ट इसको कीप करता, इसको मैं एक बार लाइन हटा करेक्ट। देता हूँ। और यहाँ पे द प्राइस वाज अराउंड 10,129 एंड करंटली इज, तो मेरा 10,229 तो ऑलरेडी हो गया है। सो आई विल प्रोटेक्ट दैट एकदम 100 पॉइंट प्रॉफिट, एकदम परफेक्ट आई विल नॉट गिव दैट अवे। एकदम। So this is the strategy. So it's already 10:25. So मैं तो strategy बताता जाऊंगा, लेकिन I think it's better if participants they ask कि उनका क्या confusion है इसमें, that will be better because that will be helping them more than what I am discussing right now. नहीं, we had great time मतलब ये स्ट्रैटेजी देखने में, लाइक लुक्स ऑफ कोर्स So इट्स do you नॉट अ like the होली strategy? ग्रेल। आप भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आप भी नहीं नहीं, काफी मुझे टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। So we are बहुत trying to अच्छा just बहुत अच्छा। eliminate whipsaws and trying to एब्सोल्युटली align with the larger trend. But that is the gist of the एब्सोल्युटली strategy. एकदम 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 एब्सोल्युटली। So I think now with Amit, Bhaiya has already shared the strategy with us. He's completed, he has showed a live example also, ताकि आप सबको दिख पाए कि कैसे strategy यूज करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे इसको अप्लाई करना है ट्रेडिंग में, which is a free software. So one thing I think lot of people are asking कि 3 इंडिकेटर से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो ऑफ कोर्स आपको बॉलिंजर बैंड एंट्री और एग्जिट के टाइम पे यूज करना है। तो जो फ्री वाले में यूज करता है, आई थिंक अमित, देयर इज a lot of people asking कि 3 से ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते, तो आप लोग 3 इंडिकेटर नीचे लगा सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। देखिए, मोर देन आई विल से, इवन मोर देन, अगर ठीक है नहीं है, बॉलिंजर बैंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नीचे वाले 3 इंडिकेटर्स हैं। एकदम एब्सोल्युटली। तो आप बॉलिंजर बैंड इन्वेस्टिंग में लगा लो ना, एक स्क्रीन इन्वेस्टिंग ही हाँ खोल लो। बस 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 भाई परफेक्ट इंडिया में परफेक्ट। जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है ही ना। आज हमने भी बिफोर बिकमिंग समथिंग इन स्टॉक मार्केट, अपने भी तो जुगाड़ से ही बढ़े हैं ना यश। एकदम 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 जुगाड़ इज मतलब हम लोग इंडियंस जाने जाते हैं जुगाड़ से। आई कॉल दिस जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जब कुछ नहीं हो तो उसका जुगाड़ करना ही पड़ेगा। एकदम एकदम एब्सोल्युटली। अरे एक स्क्रीन में इन्वेस्टिंग लगा लो और दूसरे स्क्रीन में 3 इंडिकेटर कर लो। हम इंडियंस तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में मास्टर है। एकदम एकदम जुगाड़ टेक्नोलॉजी मास्टर उधर में बॉलिंजर देखो फटाफट, इधर में 3 इंडिकेटर देखो, बटन दबाओ। है। एकदम एकदम एब्सोल्युटली। So great. So now we are open with questions. Of I course, it was a great I think strategy I've we solved shared. I have solved this 3-4 indicator problem also. एकदम एकदम वो तो आपने एकदम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अरे जुगाड़ So करोगे तो पैसा कमाओगे, जब तक आप जुगाड़ नहीं करोगे ना, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है स्टॉक मार्केट में। so let's do one thing. Let's open up with questions because I think a lot of people will have some questions. So Amit, yeah, now you can close your screen and let's open up with questions. I'll not be taking more than 5 questions because again we have already 10:30. Of course, time का पता ही नहीं चला कि कब 1.5 घंटा बीत गया. But of course, we have to end it somewhere. So 5 questions I'll take, and then of course I'll take some 2 questions on Facebook as well because काफी जन Facebook से भी जुड़े हुए and they're asking questions. So yeah, so you can now throw up your questions. I think एक question मुझे लगा 2-3 जनों ने पूछा कि why are you putting up awesome oscillator? मतलब already RSI and MACD were giving you signals. तो awesome oscillator put up करने का देखो क्या? ऑसम ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसम ऑसिलेटर इज द डिफरेंस बिटवीन द 5 पीरियड मूविंग एवरेज एंड द 34 पीरियड मूविंग एवरेज, जिसमें 5 और 34 का इट इज व्हाट इट इज डूइंग इज ही इज कैलकुलेटिंग द हाई लो ऑफ द प्राइस। कुछ स्क्रीन में आ रहा है, जस्ट वेट। यस, कैन यू सी मी नाउ? Yeah, इट able इज to see. देखो आज awesome oscillator is what? It is the difference of the 5 period moving average by the 34 period moving average. So we have to detect the certain the change in momentum in the moving averages also. RSI हमें क्या बता रहा है? It is a momentum surge, and 5 and 34 is giving me that entry point of the moving averages that they are aligning with my main trade. So this is a back tested model, so that is why I'm sharing the awesome oscillator. So you have to have some mechanical system ना, otherwise आपका confirmation क्या लेगा? RSI देखिए क्या हो रहा है कि कई बार 60-55 के ऊपर जा रहा है, इट इज अगेन कमिंग बैक टू 50 बिकॉज इट्स अ शॉर्ट टर्म चार्ट। RSI तो अप डाउन कर रहा है ना, तो मोमेंटम ऑसम ऑसिलेटर हैज गॉट अ बिट ऑफ अ स्टेबिलिटी। सो व्हेनेवर देयर इज अ बुलिश क्रॉसओवर
that crossover remains for a certain length of time and it allows me to be in the trade. So it is detecting subtle changes in momentum. That is why I'm using awesome oscillator. Okay, perfect. So I one more question everyone is asking कि if we trade this in FNO तो उसके लिए कुछ hedging part करनी चाहिए, like would you suggest? Of course, काफी लोग ये पूछ of रहे हैं. course. Like अपने क्या कर सकते हैं कि अपने को अगर कोई बुलिश स्ट्रैटेजी जैसे मैंने 9200 में बाय दिखाया था यहाँ पे, we can do a bull call spread, buy in the money call and sell out of the money call. तो you are hedged ना in a way. आपका gain कम हो जाएगा, but you are hedged. So you can use a bull call spread strategy. Ratio spread I will not suggest because this is a very volatile market. If you sell more calls than you are buying and suddenly there is a gap up or something, you will end up with a lot of losses. So मेरा favorite strategy on the basis of hedge is a bull call spread, or you can do it. You can buy an FNO and use a weekly put option to hedge your positions. These are the only two things I would suggest. Okay, perfect. So you can hedge by either a call spread strategy or either you can buy a future and of course you can buy a put as well. So Weekly again, put कर लीजिए ना. हाँ वीकली पुट कर लो, अभी तो अपना वीकली एक्सपायरी होता है डेफिनेटली, so you can do that. Again, lot of people are asking about in three indicators. Again, already it has been cleared by Amit there that of course जुगाड़ technology is the word he has used. तो तीन इंडिकेटर ज्यादा आप यूज कर सकते हो, एक इन्वेस्टिंग में लगा दो. बोलेंगे इन्वेस्टिंग में लगा दो एकदम. दो तीन जन पूछ रहे कि इन्वेस्टिंग में कैन वी यूज विद द सेम स्ट्रैटेजी, क्या ये अवेलेबल है? इन्वेस्टिंग में ना आपको मैकडी जो 240 मिनट हिस्टोग्राम है वो आपको नहीं मिलेगा वहां पे, बिकॉज ये खाली ट्रेडिंग व्यू की पब्लिक लाइब्रेरी में. ओके. Another, I think it's an important question कि with so much volatility going on, how to trail stop loss with gap ups and gap down. तो gap up या gap down कुछ बड़ा हो जाए with the volatility, तो क्या करना चाहिए? मतलब तुरंत एग्जिट कर ले अपने? दिस इज प्रिसाइजली द रीजन. देखो मैंने तभी कहा था कि स्टॉक्स में मत ट्रेड करिए. आज एक मारुति ऊपर में 500 पॉइंट ऊपर जाता है, 500 पॉइंट निफ्टी जाता है. निफ्टी ठीक है पीछे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, बट इट इज स्टिल राइट नाउ निफ्टी इज स्टिल बिहेविंग प्रॉपर्ली मेरे हिसाब से. 100-200 पॉइंट रैली आई डोंट थिंक इज मच. 2% ही तो हुआ ना स्टॉक का मूवमेंट, आई मीन इंडेक्स का मूवमेंट. तो वॉलेटिलिटी हैज कम डाउन, लेकिन गैप डाउन होगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल. दैट इज अ मस्ट. भाई अगर आपको इंडिया चाइना वॉर नजर आ रही है, जैसे मैंने भी लास्ट वीक अपने सारे पोजीशंस कट किए. आई सॉ दिस बॉर्डर टेंशन, सो आई हैड मल्टीपल लॉन्ग पोजीशंस. सो द फर्स्ट थिंग वाज कि आई कॉल्ड माय ब्रोकर एंड आई स्क्वायर्ड ऑल माय पोजीशंस. अनसर्टेनिटी में तो मेरे को अपनी सारी पोजीशंस काटना ही पड़ेगा. देयर इज नो वे आउट ऑफ इट. अल्टीमेटली ठीक है आई वेंट रॉन्ग ऑन इट. देयर वाज नो वॉर एंड निफ्टी वेंट अप बाय 200 पॉइंट्स. बट ठीक है आई वाज फीलिंग जिटरी कि यार कल को कुछ हो गया तो अपना लॉस हो जाएगा. तो आई जस्ट क्लोज्ड ऑल माय ट्रेड्स with reasonable amount of profit or at par or whatever, so that you have to manage all the time. Absolutely, it is very important. जब आपको जिटरी लगे that you can exit the trade, but it's not compulsion कि आपको होल्ड ही करना है. It depends on your risk profile, your understanding of the markets. अब ये भी तो probability होगी ना, यश वॉर होगा कि नहीं होगा, ये भी एक probability का क्वेश्चन है. no one तो अगर मेरे को लगता होगा मैं ऐसा अगर मेरे को लगता होगा तो मैं काट दूंगा सारी ट्रेड्स. अगर आपको लगता नहीं होगा नहीं यार ये तो खाली बॉर्डर में थोड़ा बहुत जमेला, तो आप नहीं काटोगे. यू विल रन इट इज एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क. एब्सोल्युटली, मतलब वो दैट्स द प्रोबेबिलिटी एंड आई थिंक इट इज बेटर. मतलब कुछ भी हो आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर लो ना, कोई बात नहीं, आपने नाली मिस कर दी बट एटलीस्ट आप सेफ हो. मतलब आपको अगर कुछ हो जाए गड़बड़ ज्यादा ऊपर नीचे तो योर कैपिटल इज स्टिल सेफ. So I think one more question we are getting that whenever you are feeling jittery, just get out of the trade. This is a cardinal rule of stock market. कभी भी आप घबराहट हो, आप पहले अपना सौदा काटो फिर सोचो क्या करना है. एकदम मैं भी यही फॉलो करता हूँ. So I think one question I think is getting from Parag, that my question is that I trade and take profit again and I take another trade and then I lost. And I find the first trade I don't exit and then I could have gained more. So I think ये सबका ये general question होता है, सबके साथ होता है. मतलब प्रॉफिट आ रहा होता है and they are not able to take it and फिर वो ट्रेड लॉस में चला जाता है. तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑलरेडी क्लियर कर ही चुके हैं. तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कुछ काफी लोग फेसबुक पे भी पूछ रहे थे. तो आई थिंक योर क्वेश्चन विल बी क्लियर. So I think one last question, I think everyone some is profit is I would like to interpret some profit is better than no profit. एकदम absolutely. मतलब आपसे ज्यादा मतलब मुझे बात करके सबसे ज्यादा मजा ये आया कि जिस तरीके से आप समझा रहे हो, आई डोंट थिंक तो आपने कभी पहले नहीं समझा है. मुझे शक हो रहा है.
कि देखो यार, आज So पैसे का मामला है, पब्लिक को समझ आना चाहिए. आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. सी दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब आप ये चीज आके कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत जन ये चीज नहीं करते हैं, और आप ये चीज कर रहे हो, काफी लोग को आई थिंक काफी फायदा हुआ होगा, बिकॉज दे हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम, एंड काफी लोग को ये चीज समझ में नहीं आता थी कब एग्जिट करे, या रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। आपका जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि कैसे आपने आप सीए से लेके अभी तक यहाँ पे आए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो वन लास्ट क्वेश्चन फेसबुक पे मैं एक्चुअली काफी जन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यू शुड हैव इन दिस स्ट्रैटेजी, मतलब कितने के हम लोग इसमें आइडियल रिस्क रहनी चाहिए, एंड आउट ऑफ परसेंटेज ऑफ कैपिटल कितना रखे इसमें। देखिए, माय प्राइमरी थिंग इज डोंट लूज मोर देन 1% और 2% ऑफ योर कैपिटल. अच्छा, इंडेक्स है तो आप 2-3% तक जा सकते हैं बिकॉज वॉलेटिलिटी कम है. ओके. And ideal risk reward is minimum is 1:1.5 or 2, and you can even scale it to 3. So don't trade Oh, unless you are sure, unsure of making 1:2. 1:2, 1.5 to 2 is minimum. वो आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा इजीली कि इसमें 200-300 पॉइंट आराम से बन जाता है. एकदम परफेक्ट है। So with this, thank you so much, Amit Bhaiya. Again, it's my pleasure again. मैंने आपको होस्ट करके इतना ज्यादा अच्छा मजा आया, इतना कुछ मुझे सीखने मिला, ऑफ कोर्स हमारे ऑडियंस को भी काफी कुछ सीखने मिला, काफी कुछ विजडम मिला। आपका जो एक्सपीरियंस था, आपकी जो स्ट्रैटेजी, इट वाज सच अ सिंपल वे यू हैड एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी, मतलब एक लेमन को भी शायद इजीली समझ में आ गया था, आपने उसको प्रैक्टिकली भी दिखाया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So I think once again, thank you so much for giving your time, for giving your effort to मतलब build the PPT, और फिर आपने लाइव जो दिखाया, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। I'm honored to host you, मतलब of course I will like to again host you in the future में, हम लोग definitely और एक थैंक यू सो सेशन मच. रखेंगे। So a lot of people were asking, so you can contact Amit Bhaiya on his Twitter handle as well. He's very active on Twitter. You can share your feedback with them, because of course he Yeah, has you put a you lot can of you effort. can DM me. Yeah, you can DM me if there is any problem with the strategy. आपके जितने भी participants हैं, मेरे को DM कर दो खाली Twitter में. I will answer. I answer to everyone. Perfect. You can just DM him on Twitter and he will definitely answer. And of course, again, I like, मतलब thanks so much for giving your time. मतलब बहुत लोग होते हैं जो अपना टाइम नहीं देते हैं या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहते, जिस तरीके से आपने शेयर किया, I think everyone liked it. Like we are already getting some great feedback. So keep sharing these feedback. अमित जी को भी बताइए कि what your feedback is, so that of course he can he'll be ready to share another strategy with us in the future. Of course, वो लुकते मतलब दिखते काफी यंग है, बट उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो जस्ट सम क्लोजिंग रिमार्क्स बाय आवर अमित रॉकस्टार जी, because I चलो. call you a यश, rockstar. thank you. चलो. Yash, I would really like to thank you and Crealth Educare for giving me this opportunity on this platform. मेरे को बहुत अच्छा लगा. You know, I really love sharing my experience, and you know why I really love, because I have faced a lot of problem, you know, in getting in understanding technical analysis. तो मेरा ये है कि यार लोगों को कम से कम फायदा हो, जो सब मैंने problems face किए, let people not face that problem. So I once again thank you for giving me this opportunity, and I thank all the participants for patiently listening to my views and my strategy. A big thank you to all of you. Perfect. So big thank you to, of course, all our participants who have joined us, who have stayed till the end. We had the highest audience till now जो हमारे webinar पे था. So again, that's an achievement for us. So thank you so much everyone for joining. I hope we were able to add value, add knowledge. As Amit Bhaiya told that he has shared his experiences, जो वो face किए, वो नहीं चाहते कि आप लोग भी face करें. So of course उन्होंने रियली अपना पूरा हाथ दे दिया, जो जो उन्होंने फेस किया, जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए, उन्होंने क्लियरली बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में हमें सबको समझाया. सो दैट वाज इन वेरी इजी वे ही एक्सप्लेन ऑल ऑफ अस. So again, no words to again thank you for giving your time, for your effort, for sharing the strategy. The strategy was also very good. कोई भी एक लेमन रिटेल ट्रेडर भी इसको अप्लाई कर सकता है. एंड ऑफ कोर्स जो नॉलेज पार्ट है, सी अगेन भैया emphasize a lot on the knowledge part कि आपको नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है, एंड वो भी हम लोग भी यही फोकस कर रहे हैं. हमारा मोटो भी ये है कि हम आपको इतनी नॉलेज दें ताकि आप खुद से अपनी ट्रेडिंग कर सको. यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनीवन, यू विल बी योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर. एंड दैट इज व्हाई वी ब्रिंग ऑन some great speakers like Amit Bhaiya, who share his experiences, who share his setup, and of course they are very open to talk, they are open to help. That is very important, because
जो एक अंदर से हेल्प करने की जो चीज होती है वो बहुत कम जनों में होती है. सो अगेन दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर यू कि आप चाहते हो कि आप हेल्प करो. सो I like to end on this note that keep using your stop losses, keep using your risk management. Very important. Uh, it's very important to protect your capital. आप अपना risk manage करें and stop losses को trail करें ताकि आप आगे बढ़ सके ट्रेडिंग में. You become a successful retail trader. That is our motto कि सब successfully trade करें in India, and we have much more participants in the stock market that we have right now. So that is our motto. So thank you so much again, everyone, for joining us on Zoom, on Facebook. I'm obliged. Keep sharing your feedback. Keep sharing what you like. Keep sharing what you don't like, so that we can improve. Because I totally believe on improving. We are never master in anything. We keep on learning. Also, we are learners like you all. So thank you so much for showing your love, your feedback. And of course, next week we'll come with another great speaker who will be sharing some great insights on technicals. Once again, Amit Vyas, thank you so much for joining. I'm obliged to host you, and I'll see you all definitely next week, next Sunday, same time, 9 p.m. with another speaker who will be sharing some great insights. And Amit, I'm going to tell you that आपको वापस हमारे साथ आना पड़ेगा and वापस एक नया setup share करना पड़ेगा. That is very important. So I hope you will definitely most welcome. It's been an absolute pleasure to be on this platform. I'll be really happy to come back. Thank you so much, Yash. Great, great. Thank you so much. Bye bye. Good night. Take care. And see you all next week with some great insights and technicals. Thank you. Signing off, Yash.